Myself, Dr. Amara Wahid, Assistant Professor from the Institute of Plant Breeding and Biotechnology. I welcome our distinguished guest, Mr. Fakhri Imam, who is ex-Federal Minister, Dr. Richard Trethwan, Dr. Rebecca, Dr. Negar Gileta, who are international collaborator for our wheat, hybrid wheat program, and Ms. Rabiel Saduzai, Mr. Nasirullah Khan, Mr. Syed Hassan Abdi, Mr. Imran Hamid, and Mr. Junaid Khan, who are from Fatima Group and Fertilizer. Now I request Professor Dr. Asif Ali, Tamgha Imtiaz, Vice Chancellor of this university, to give a welcome address and introduction to hybrid wheat. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Allahumma ya shafi'il amrad ashfi marzana maradal muslimin. Honorable Sayyid Fakhri Imam Saab, Sayyid Awad Imam, Gurdeez Saab, Professor Richard, Rebecca, Nagash, Nasir Saab, my very dear Zimidar Bhaiyo, students. So, Richard, today is hybrid wheat program, and we'll use hybrid language also, because there many would understand English and the others would understand Urdu also. So, ज़्यादा ज़रूरत ये है कि हम उर्दू में बात करें, because they already know what is hybrid system. And anyway, I'm very grateful to Richard, and I would like to acknowledge, मैं बहुत clarity से एक tribute पेश करना चाहता हूँ, and the tribute is to Norman Darby, who in fact started this program about 30 years ago, and now we are at this stage that we are talking about commercial seed production today. And I was mentioning this, Shahsaba, you must would like to appreciate this, that the wheat revolution or the green revolution, जिसको कहते हैं ना सब्ज़ इनकलाब, that came in 60s when the Norman Borlaug, he in fact came up with the technology. एक टेक्नोलॉजी लेके आया. पहले हमारी 10-12 मन थी पैदावार गंदम की, then it jumped up to at least double because of one gene which is called Norn10, और उस वजह से हमारी wheat छोटी हुई. So high fertilizer, high input. So at that time, Norman Borlaug played a significant role to save the world from hunger, and the success initially came from this part of the world, which is Faisalabad gets the credit. डॉक्टर साहब ने आ जाना था, वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, माशाल्लाह बाजवा साहब का एक रोल था. बट द माई पॉइंट व्हिच आई वांट टू मेंशन इज कि वो जो साइंसदान था नॉर्मन बोरलॉग, उसको वर्ल्ड को हंगर से बचाने के लिए, एक सिस्टम लाने के लिए, उसको दुनिया का सबसे आला प्राइज, नोबल पीस प्राइज उसको मिला था, टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम हंगर. एंड आई एम वेरी श्योर फॉर ए नेक्स्ट क्वांटम जंप, जिसको कहते हैं कि इस तरह का जंप लेने के लिए, वीट की प्रोडक्टिविटी को सस्टेन करने के लिए, the hybrid seed system is equally good. So that is the next jump, and I would expect that Richard would be in the same line of Norman Borlaug, और इंशाल्लाह इससे ये सक्सेस आएगी. दुनिया में भूख का, और ये I'm very grateful to our partner from UK, DFID. They initially funded this project, 5 साल के लिए हमारे पास दिया, और हम डॉक्टर जुल्फ़कार साहब हमारे जब यहाँ पे आज नहीं मौजूद हैं, तो वो मेरे साथ थे. तो वो 5 साल पहले हमने वो प्रोजेक्ट विन करके वी वर पार्टनर विद ऑस्ट्रेलिया, KWS इन UK, और यहाँ से थे. फिर हमने वो हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी यहाँ पे ट्रांसफ़र की, वो ट्रांसफ़र करके, और अब हमने कमर्शियल सीड प्रोडक्शन में आज फातिमा ग्रुप जैसे आपके पास बैठा है, इनके पास हमने, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द फातिमा. So they picked up the concept and they believed in the that innovation, और उसको इन्होंने अडॉप्ट किया, और आज हम इस स्टेज पे हैं कि वो कमर्शियल सीड प्रोडक्शन की. So the point again is कि जी ये जो एक सफ़र शुरू हुआ, then after 5 years I'm grateful that Richard thought about it, and we together worked to put up a proposal to ACIR, the Australian Centre for International Agriculture Research. उन्होंने हमें ये फंड किया. then we have partners from Ethiopia, Nagash is sitting here, we have partner from Bangladesh. Anyway, so the point is कि जी ये जो एक सफ़र शुरू हुआ अब ACIR ने 5 साल के लिए, तो ये हमारे ग्रुप का ये प्रोग्राम है. Now we are a stage when the hybrids are in the testing phase, और उसके बाद हम इंशाल्लाह अजीज़ अगले 1 से 2 साल के अंदर ये फील्ड में अवेलेबल होगा.
हम उर्दू में ज़रा इसलिए बात करना ज़रूरी है कि ज़िम्मेदारों को थोड़ा सा पता चल जाए। हाइब्रिड का आप ऐसे समझिए कि मकई का बीज हाइब्रिड है, और आज से 100 साल पहले ये शुरू हुआ, तो अब जनरली लोगों को पता है कि ये हाइब्रिड लगाएं और जो बगैर हाइब्रिड के जो बीज लगाएं उसमें पैदावार का बड़ा सिग्निफिकेंट फ़र्क है। एक बात सबको क्लियर है ना भैया कि ये है हाइब्रिड। इसी तरह राइस, डॉक्टर साहब भी इसमें कर रहे हैं, डॉक्टर सनक्रॉप भी इसमें काम कर रहा है, तो हाइब्रिड राइस की भी इसी तरह करके एक गेन है। लेकिन कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जिसमें हाइब्रिड बनाना बहुत मुश्किल था, जिसमें कॉटन है, और दूसरा उसमें इतनी इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि कुदरत ने उनको हाइब्रिड बनाया हुआ था। मसलन कपास को अगर हम लें तो वो एक नेचुरल हाइब्रिड हम उसको कहते हैं कि दो जीनोम है वो इकट्ठे पड़े हुए हैं, दे आर बाउंड टू स्टे टुगेदर, इकट्ठे हैं, और वो उसमें जो हमारी वैराइटीज़ हम ब्रीड करते हैं या हाइब्रिड ब्रीड करते हैं तो उसमें पैदावार का इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता। लाइकवाइज वीट, इसमें 3 जीनोम इकट्ठे पड़े हुए हैं, इसमें जिसको कहते हैं हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस जो डिप्लॉइड की तरह का वो नहीं होता। लेकिन दूसरी इसमें जो कंस्ट्रेंट थी मकई का, अगर आप देखें तो उसमें हाइब्रिड बनाना आसान है। मकई में आप देखें तो ऊपर जो उसके लगा होता है टेसल उसको कहते हैं, वो मेल पार्ट है, और जो सिल्क्स हैं उसके जो धागे से निकले होते हैं छल्ली से, वो फीमेल पार्ट है। तो अगर आप उसको टेसल को रिमूव कर दो तो देन यू आर लेफ्ट विद फीमेल। सो यू कैन यूज हाइब्रिड का, कि अपनी मर्जी से जो मेल ला के उसके ऊपर डालें। शाह साहब आप ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। सो उसमें इट वॉज ईजियर इन मेज, सो यू कैन ब्रिंग इन एनी पोलन फ्रॉम एनी सोर्स। और हाइब्रिड में ये है कि जैसे रिचर्ड वाज टॉकिंग दी हेटेरोटिक पूल्स, जितना डिस्टेंस ज्यादा हो पेरेंट्स में उतनी ही यील्ड जो है वो ज्यादा बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ ह्यूमन पोर्स में कहते हैं कि जनाब रिश्तेदारों में शादियां नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे इन ब्रीडिंग होती है। तो जितनी नेशंस में पेरेंट्स जितने ज्यादा दूर के हों उनकी औलाद उतनी ज्यादा तकड़ी होती है, राइट। सो लाइकवाइज इन उसमें मेज में आसान था, तो आज से 100 साल पहले से हाइब्रिड मेज बनना शुरू हो गया, किसी को कोई इशू नहीं है और वो हाइब्रिड मेज बनाते हैं। वीट में एक ही फूल के अंदर छोटा सा इसका फूल है, आजकल निकले हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा, उसी में उसका मेल पार्ट है, उसी में फीमेल है, और वो वैसे ही पोलिनेट कर देता है। सो स्टेरिलिटी सिस्टम वाज नॉट अवेलेबल। इसमें वीट में सीड बनाना तकरीबन नामुमकिन था। सो therefore we give credit to Norman Darby and Richard and his team कि जी उन्होंने उस टेक्नोलॉजी पे कैपिटलाइज किया, और वो अब हमारे पास फीमेल लाइनें इन्होंने डोनेट की, हमारा इनका अपना मटेरियल भी और हमारा भी। तो अब हमारे पास फीमेल लाइनों की एक रेंज आ गई डॉक्टर साहब, तो वो अब रेंज उसके साथ अवेलेबल है, और वो एक टेक्नोलॉजी है। सो दिस इज बेसिकली ए टेक्नोलॉजी शिफ्ट। उस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम हर साल तकरीबन 700-800 तो हम यहाँ बनाते हैं, और लाइकवाइज इन ऑस्ट्रेलिया ये वो सीड बनाते हैं। तो जब उनको हाइब्रिड्स को टेस्ट करते हैं उनमें से सारे के सारे कामयाब नहीं होते। उनमें से कुछ, फॉर एग्जांपल फातिमा ग्रुप को हमने 5 हाइब्रिड्स दिए हैं जिनका आज हम एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं, जिसको हमने उन सैकड़ों हाइब्रिड से टेस्ट किया, जो अच्छे थे वो इनके साथ तकरीबन 2 साल से हमने वो शुरू किया। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट चैलेंज क्या है कि 1 वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड कि जी हाइब्रिड सीड जो है वो चाहे वो बड़ा फार्मर लगाए, चाहे वो छोटा फार्मर लगाए, चाहे दरमियाना फार्मर लगाए, वो एक ही जेनेटिक्स है। सीड की क्वालिटी के ऊपर कोई इशू नहीं है, उसकी जेनेटिक्स पे कोई इशू नहीं है। वेदर वो जो उसको एक्स करे, अल्लाह दिता बाय करे, खर बाय करें, या गर्देजीज बाय करन, शाह साबान लगाएं, तो सबके पास सीड की जेनेटिक्स एक ही है। सो दैट हैज मेड ए डिफरेंस। जो और हमने इसकी बाकायदा स्टडी की है कि जो फार्मर जो है, बड़े फार्मर उनके पास हमेशा अच्छे सीड की एक्सेस ज़्यादा होती है, लेकिन जो छोटे हैं जिनकी यील्ड यानी ज़्यादा है उनका सीड अच्छा, जिनकी एवरेज या बिलो एवरेज फार्मर्स हैं उनको सीड की वो क्वालिटी मैसर नहीं होती ओपीज में, ओपन पॉलिनेटेड में। जो हाइब्रिड का बीज है वो सिर्फ बीज के लिए क्रॉप लगाई जाती है कि आपने हर साल सीड बनाना है और वो देना है। दूसरा हमने ये किया कि जनाब इसको फातिमा वाले ने हमारे साथ काम किया, हमने यूनिवर्सिटी में डेमोन्स्ट्रेट कर लिया कि जनाब ये फीमेलें इतनी लगाओगे, मेल इतनी दूर लगाओगे, इतना नंबर लगाओगे। डॉक्टर अली शेर साहब हमारे ब्रीडर यहाँ पे मौजूद हैं, तो सीड इतने परसेंटेज से सेट हो जाएगा। तो उसमें 2 चैलेंज, यानी एक फीमेल लाइन को मेंटेन करना होता है, एक सीड प्रोड्यूस, वो हमने जब कर लिया तो फिर उसके बाद सीड बेचना यूनिवर्सिटी का काम ना, इतना सीड हम बना सकेंगे, या तो वो पंजाब सीड कॉर्पोरेशन करती है,
या सीड कंपनीज करती हैं। हमारा बड़ा क्लियर ओपिनियन है, अभी रिचर्ड के साथ शाह साहब भी डिस्कस कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में या जितने एडवांस कंट्रीज हैं उसमें जो इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च, दे डू प्री ब्रीडिंग। यानी प्री ब्रीडिंग का मतलब यह कि हमने मेल फीमेल लाइनें बना ली, मेल लाइनें बना ली और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर लिया, वो सीड का बिजनेस करते हैं 100%। और वो फिर जो उसका टैक्स जनरेट होता है वो फिर उस पर एंड पॉइंट रॉयल्टी दे देते हैं कि जनाब मैंने इतना सीड बेचा, इतना मुझे प्रॉफिट हुआ, इसमें से इतने % हम ब्रीडर का इंसेंटिव या जो इन्होंने रिसर्च की है ये उसको वापस चला जाए, ताकि नई रिसर्च हो, नई इनोवेशंस आएँ, नई चीज़ें आगे चलें। सो उसमें जो हमने भी इसको ऐसे, दिस इज़ द मॉडल वी हैव फॉलोड। हम भी अपनी यूनिवर्सिटी में एग्जैक्टली वही मॉडल फॉलो कर रहे हैं जो रिचर्ड फॉलो कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में, कि वी डू प्री ब्रीडिंग, फिर हमने वो क्रॉसेस बनाए, टेक्नोलॉजी को मैच्योर कर लिया, डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। तो अब जो कमर्शियल सीड प्रोडक्शन है उसमें हमारे बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स हैं। सबसे पहले पार्टनर जो हैं वो फातिमा हमारे साथ आया था, और फातिमा आज इस स्टेज पे है कि उन्होंने अगले साल से इंशाल्लाह वो फार्मर फील्ड पे भी लगवाएंगे। हमारे नेशनल यूनिफॉर्म यील्ड ट्रायल्स में भी पहला साल उनका कंप्लीट हो जाएगा। और आज जो हम ये भी मीटिंग करके आ रहे हैं उस पर जो रस्ट है उसका अटैक नहीं हमें कहीं पे भी नज़र आया। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं सीड प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी भी काफ़ी हद तक मैच्योर हो गई है। उसमें जो हमारा सीड का सिस्टम बनाने का मेल फीमेल लाइनों को वो भी हो गया। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये है this money is coming from public money from Australia, ACIR, public money investor, या तो the public should get benefit. It's not only a commercial venture. ये सिर्फ कारोबार के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि लोगों की भूख दूर हो, ऐसा हम सिस्टम लेके आए जिससे पैदावार बढ़ जाए, पैदावार बढ़ने से जो जिम्मेदार की इनकम जनरेट हो, और हम वो जो एरिया वीट के अलावा हम जो अपने तेलदार अजनास हैं, ऑयल सीड हैं, पल्सेस हैं, उसमें शिफ्ट कर सकें। और जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, हमें फूड की ज़रूरियात भी बढ़ रही हैं, सो उसको हम उस पर फिक्स कर सकें। सो हम वेरी हैप्पी कि जी आज हम रिव्यू कर रहे थे कि पाकिस्तान ने जिस तरह 60s में इस इनोवेशन को फॉलो किया और हमने लीड किया, आज भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी स्टेज पे हैं। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी, जो एग्रो इंडस्ट्री वाले भी, वो भी हैं कि जनाब हमें इनोवेशन को, एक बात जो है ना जो एडवांस कंट्रीज़ में और हम जैसे मुल्कों में है कि जी यूनिवर्सिटियां जो होती हैं ना वो होती हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, रिसर्च के इदारे एक्सपेरिमेंट, और सारे एक्सपेरिमेंट कामयाब बिल्कुल भी नहीं होते। जितने एक्सपेरिमेंट करते हैं उनमें से 100 में से अगर एक कामयाब हो जाए तो वो दुनिया बदल देता है। सो हमारा काम है उन एक्सपेरिमेंट्स को करते रहना। लेकिन हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस यूनिवर्सिटी को ये खासा हासिल है कि इंडस्ट्री वाले हम पे ट्रस्ट करते हैं, जिम्मेदार भी, इंडस्ट्री भी, कि हम बड़ी नेक नीति से, लगन से काम करते हैं। और हमने अपना पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं, हमने पब्लिक का इंटरेस्ट जो अपने जहन में रखा हुआ, तो उसको वो जो इनोवेशंस लेके आ रहे हैं तो दे हैव स्टार्टेड बिलीविंग। और ये इदारा ऐसा इदारा है जिसके साथ एग्रो इंडस्ट्री, दिस इज द इंस्टीट्यूशन हियर इन पाकिस्तान वेयर एग्रो इंडस्ट्री इज, most of them are attached with, every agro industry is attached with this university one way or the other way, and they are always supporting us, and they have started believing in innovations. This is the prime thing. They have started believing in innovations. They have started adapting to the new system which you were saying, that pre-breeding and then commercial breeding should go to the private sector, and then they should kind of feedback or give incentive to the institutions so that they can come up with new innovations. So ये जो हमारा इंशाल्लाह आज हम ये साइन करेंगे, ये फातिमा ग्रुप है, हमारे पास मैडम खर भी आई हुई हैं जिन्होंने इस साल लगाया था। इसके अलावा भी हमारे पार्टनर और मजीद भी हम बनाएंगे। डॉक्टर शफीक साहब यहाँ पे आए बैठे हैं, इन्होंने भी पहला साल, मैंने इनको कहा दे आर कन्विंस्ड। कल आसम जी साहब भी आए थे। सो दिस इज व्हाट आई सेड, दैट दिस इज ए टेक्नोलॉजी। वी आर नॉट सेइंग दैट द हाइब्रिड व्हिच वी मेड टुडे इज बेस्ट ऑफ द बेस्ट, नो, but we have the potential to make best of the best. Any combination will make, जो हम बनाएंगे और आइंदा इंशाल्लाह अज़ीज़ वो बढ़ते रहेंगे, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी। सो द पॉइंट ये है, जो पब्लिक के इदारों से हमारे पास सेक्रेटरी बैठे हैं, साउथ पंजाब तशरीफ रखते हैं, उनसे भी कि सर इनोवेशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। और ये कुदरती बड़ाइश साहब आज बैठे हैं कि जनाब हमारे हमने जो स्मार्ट ट्री सिस्टम जब शुरू किया ना जी, सो दिस इज अगेन, दिस इज नॉट ए न्यू सिस्टम। को 20-30 साल पहले टाइम और स्पेस की भी ज़रूरत होती है कि जी किसी वक्त में वो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत अभी अहेड ऑफ टाइम होती है। हाइब्रिड भी अभी थोड़ा सा इनिशियल फेजेस में है,
तो जब हमने स्मार्ट ग्रिड सिस्टम शुरू किया, हाइब्रिड की भी आपने बात की कि ना वो जो फलाना साइंसदान वो कहता है कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन पॉइंट ये कि फ़ाइन शायद आज ना हो लेकिन अगले 10 दिन बाद कोई आए। तो वो मैं अगले दिन गफ़ार साहब ने जब प्रेजेंटेशन दी ना, तो मैं आई वॉज वेरी हैप्पी दैट यू नो दिस सिस्टम हैज़ अडॉप्टेड दिस थिंग, दे हैव सीन कि द फ्यूचर इज़ दिस एंड दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। ये हाइब्रिड सीड किसी के ऊपर कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन जब इसमें गेन लोगों को नज़र आएगा तो हर बंदा इसको अडॉप्ट कर जाएगा इंशाल्लाह। अडॉप्शन का रेट ऑलरेडी हाई है। और आप लोग जो मकई हाइब्रिड लगाते हैं, जो राइस हाइब्रिड लगाते हैं, उनको पता है भी हाइब्रिड की क्या सक्सेस है। और हमेशा ही लाइक वाइज इन वेजिटेबल्स हमारे पास अब जो हाइब्रिड का सिस्टम आ रहा है, तो ये सारा कुछ बात एनीवे। तो थोड़ा सा मेरा ख्याल मुख्तसर भी कर लेते हैं, लेकिन मैं आप सबका बड़ा मशहूर हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हम एक नया सॉर्ट ऑफ इदारा हैं और आप सब लोगों की हमें बड़ी सपोर्ट हासिल रहती है हमेशा ही। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सपोर्ट कंटिन्यू करेगी, विल कीप जो बिलीव करेंगे, इनोवेशंस को ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे अगर बढ़ना है और हम काफ़ी पीछे रह गए हैं, तो एग्रीकल्चर ही वो सेक्टर है जो हमें इस सूरत हाल से निकाल सकता है। और उसमें एसेंशली इनोवेशन की, जैसे ये इनोवेशंस आपके सामने हैं एंड देयर आर मैनी मोर कमिंग अप। सो हमें इसको मिल के इस जिद्दोजहद से निकालना है। हम बड़े मशहूर हैं सैयद फ़ख्र इमाम जैसे लोग जो हमेशा से एग्रीकल्चर पे बड़ी शफ़क़त रखते हैं, इनकी बड़ा इन डेप्थ नॉलेज है, क्रिटिकल एनालिसिस भी करते हैं, इनको आगे देखने का भी इनके अंदर विजन मौजूद है, प्रीवियस भी इनके पास पूरे का पूरा एक एनालिसिस मौजूद है। तो ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड कि जी हम किस तरह मूव कर सकते हैं आगे। मैं बड़ा मशहूर हूँ इनका, बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट का, ज़िम्मेदारों का, पर्टिकुलरली द गेस्ट फ्राम ऑस्ट्रेलिया कि जी वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हम एक मोमेंटम को लेके आगे चले। सो थैंक यू वेरी मच इंडीड, आई एम सो ग्रेटफुल। खालिद खोकर साहब का मैं बड़ा मशहूर हूँ। ये खालिद खोकर साहब सदर हैं, मैं पहले ही बात कर रहा था, इनका बड़ा क्लियर इनकी भी है। वन, जब भी ये बात करते हैं बिल्कुल डेटे के साथ बात करते हैं और जैसे ही लगता है इनको ये प्रिविलेज हासिल है कि ये फ़ख्र इमाम साहब के साथ काफ़ी उठते बैठते हैं, तो उनसे भी सीखते हैं, बाकियों से भी इनका इंटरेक्शन रहता है। दूसरा, इज़ वेरी मच कन्विंस्ड कि किस तरह करके हम स्ट्रेटन अप कर लें अपने यूनिवर्सिटीज़ के और रिसर्च के सिस्टम को। और हर फोरम पे इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस होती है कि हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है कि हम एग्रीकल्चर में आगे चले जाएँ। खोकर साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Thank you, sir. Now I request Professor Dr. Richard Trethon from Plant Breeding Institute, University of Sydney. Please, sir, come and give a presentation about hybrid wheat. No, thank you very much. And let's just like to thank Professor Asif Ali for the invitation to talk to the gathering today. Really do appreciate that. We haven't been back to Multan because of COVID-19, but all of those restrictions are passed and it's wonderful to be able to visit once again. Now, Professor Asif spoke about the hybrid innovation and its potential impact and impact in the world, impact here in Pakistan. But I'd just like to clarify that everything we've done is a team effort. It's a partnership. And I've been very fortunate to be involved in the science end of that partnership and to be able to carry on some very important early work and to make some real progress on a big problem, and that is that is developing an efficient system for producing wheat hybrids. Now that team involved many people, including the researchers here at Multan and at Faisalabad as well. I mean, particularly here at Multan, we have walked the hybrid walk together, I think now for 7 years. Asif, it's been quite some time, and it has been a very productive time, as I'm sure you will have understood from Professor Asif's presentation. Now, I have a short presentation, or maybe not that short. It won't be in hybrid language, so I hope you understand my accent, an Australian accent. If you don't, please ask me questions afterwards. Here we go. Okay, just very briefly, why did we decide to work on wheat? We decided to work on wheat because in Australia
wheat is by far and away our most important grain crop. It alone is worth some $10 billion to the Australian economy every year. We know it's a global crop. 20% of people in the world derive their calories from wheat. And we know that a yield plateau has started to form. Since the turn of the century, yields have been plateauing all around the world and in Australia as well. So what is a wheat hybrid? I just thought I would put up a simple demonstration here. It's a cross between what we call two inbred lines, or two open pollinated varieties if you like. The first cross progeny produced from that will show potentially heterosis or hybrid vigour. Now the problem in wheat is that wheat is self-pollinated. So to make a cross, you have to do what this person is doing here with a pair of tweezers. Okay, you have to spend maybe 5 minutes emasculating the wheat spike. There is no way we could produce a commercial system to make hybrid seed for farmers by doing that. So we had to overcome the constraint of self-fertilisation, and that's why we got involved in this research. The benefits of hybrid vigour, I think, are well known, and the story of maize is quite a clear one. I've presented a graph here, hopefully many of you can see that, and it maps the change in corn yield or maize yield versus wheat yield in the US. Now I chose the US because we don't grow maize in Australia, and I think it's a nice example within one country. And you can see that the rate of progress in corn or maize is so much higher than the rate of yield progress in wheat. A large part of that is because of heterosis or hybrid vigour. But the hybrid vigour brought more investment. If you buy the seed every year to enjoy the benefits of hybrid vigour, then the commercial sector grows. When the commercial sector grows, more investment goes into the crop. This is the key slide I just want to mention. मकई की स्टोरी मैंने आपको बताई थी कि जी 100 साल पहले शुरू हुआ. ये देखें कि जी पैदावार 40 से शुरू हुई और ये उसकी लाइन है, ये प्रोग्रेस है. वीट में जो ओवर टाइम आई चेंज वो ये है. ये आपको शो करती कि हाइब्रिड जो है उसमें कितना पोटेंशियल है यील्ड को बढ़ाने का. ये मैं बताना चाहता. थैंक यू. Now, thank you, Asif. In fact, that was great to have that explained in the local language, because this is key. We believe that we can increase the yield of wheat like the increase in maize that we have seen historically. In Australia, what I've done here is I've mapped global wheat yield against Australian wheat yield, and we are from Australia. Our target environment initially is Australia, and you can see that there is a plateau forming. So I've mapped from 1980 through to about 2018, and you can see that average wheat yields are flatlining. So how can we stop that flatlining? I believe that hybridity is the answer. In our environment, we also have a big problem with droughts, and you can see I've circled a couple of the bad drought years there. Now, one added advantage that hybrids give is more stability in yield. Even though our climate is becoming more variable, I believe that hybrids have a role to play in improving farmer profitability through more stable yield. Farmers definitely, the F1 hybrids definitely are more stable in their performance, even in the drier environments. So, it looks like it'd be a good thing, right? Develop a hybrid system in wheat. And many people thought so as well. And tens, hundreds of millions of dollars over the last 50 years have been spent trying to do this. The commercial sector has spent a lot of money trying to do this, and there are a number of potential systems. Cytoplasmic male sterility, chemical systems using gameticides, for example, temperature-induced sterility, transgenics, to try and use transgenics as facilitators. None of these have really worked. None of these are really profitable, and that's the thing. The system has to be profitable. They were too expensive to use. They did not give us complete sterility, male sterility, which is needed for a hybrid seed production system, nor did they completely restore the fertility in the hybrid.
So that's what farmers will sell in the market. They want a fully fertile F1 hybrid. There were all sorts of issues with cost. The cytoplasmic systems, very expensive, the breeding. You have to have 3 parallel breeding programs. Too expensive. And of course, if you use a transgene in any way, even as a facilitator, there's no way you can guarantee there's no tDNA in the product. So therefore, no way, you will not be able to release that into the environment. Our system is genetic. This is what, if you've been out in the field and seen the hybrids here, you will have seen those F1 hybrids made with this system. It's based on natural diversity. There's no transgenes here. It's natural diversity. Traditional, if you like, cytogenetics went into the development of this. It's really easy to use. You get complete sterility, complete restoration of fertility, absolutely fantastic. And we have molecular tags for all components of the system. So if you're a plant breeder, you can use these molecular tags and you can put the whole system together in any background you care. And you'll notice here in Multan that is happening. The breeders here are already making their own females using this system. So it's very easy to use. How does it work? Well, I've given a little demonstration here. You grow what we call you plant a blue seed, blue coloured seed, and it produces a plant with blue and white seed on it in a ratio of 1:1. You thresh that and you end up with a bucket of blue and white seed. You use a colour sorter. Now this technology has advanced enormously in recent years. Colour sorting was a technology gap. It's not any longer. There's a lot of advances being made in this area. You separate into blue and white seed. The blue seed is fully fertile and you plant it again to keep the system running. The white seed is fully male sterile. You plant that in your seed production system. So that is how it's used. It's very easy, it's very cheap. We estimate that the breeding costs are 20% of previous hybrid breeding costs. So a lot is saved on this in the breeding. With the hybrid seed production, you go out into the field and here you can see strips of female lines. Do I have a pointer there? No. But strips of female lines and strips of male lines. The female line is male sterile. The male line is male fertile. And you can choose any male line you like. There's no limitation there. You let nature do the work, move the pollen onto the stigma, and then you harvest the female line, and every seed on that line is hybrid. That seed is sold to the farmer. Now, these are traditional strip trials. We're also experimenting with mixtures, as is the team here in Multan. And let me say, we have a bit of a hybrid wheat arms race going on between Pakistan and Australia to see who will be the first to release the first hybrid to farmers. And at the moment I think it's very close, but Pakistan might be ahead. We are also looking at mixtures, so that is to reduce the complexity. So what we plan to do is to mix female seed and male seed in a ratio of 92:8, so 8% male. Then the seed grower just plants that like any other open pollinated variety. Increases it. That seed is 90% hybrid, and you would market it to farmers as 90% hybrid. And we think that this will greatly reduce the cost of the seed production. And the breeder or the seed company will be responsible for making the mixture in the right ratio, but the seed producer just increases it and then it's sold onwards to farmers. So we think it can be very cost effective, the whole seed production aspect of making hybrids or marketing hybrids. I wanted to talk a little bit about, there it is, the search for heterosis or hybrid vigor. Because we have solved the problem of the system, everybody is still trying to work on the system, but here in our team we have the system. So now we're able to concentrate on the hybrid vigor. Where is the hybrid vigor? Because the farmers are going to want the hybrid vigor. That is the profit. So when we began this work, we started looking at all sorts of combinations of hybrids.
and we compared them to Suntop. If that's the red line is Suntop, the highest yielding Australian variety. 6 years ago, very few lines showed hybrid vigour. And there's a reason for that. It's because for 100 years, plant breeders have crossed the best with the best. They broke up the heterotic pools. You need to have two distinct pools of material that when you cross together, you make heterosis or hybrid vigour. They push them together. And for that reason, heterosis was rare. But 6 years on, this is the comparison with the same commercial check. You see we have a large number of lines that show heterosis or hybrid vigour, and that is breeding. That is developing heterotic pools. And this is the commercial value. This is what the plant breeder needs to do. Create the heterotic pools. The intellectual property is in these two pools. You never give the secret away, what's in your two pools, because when you cross those, this is what a maize breeder does. You make the new variety, that goes to market. So you can see that in 6 years, we have rapidly increased the frequency of lines with hybrid vigour through breeding. It can be done. Don't let anybody tell you there's no such thing as hybrid vigour in wheat. It is there. You must also maintain rust resistance. The hybrids here in Multan that are being developed are rust resistant. We need hybrids to be synonymous with rust resistance. Very, very important. And it's not hard. We look at complementary genes. If you look at this graphic here, the F1 hybrid is in blue. And there's a score on the y-axis. The lower the score, the better. A score of 2 is highly resistant. The parents do not have the same high level, but they carry different rust genes. So when you cross them together, the hybrid is better than either parent. This you can do. This is the power of making hybrids. And we screen extensively for rust resistance, and that has to happen wherever we release hybrids. Processing quality. People at the end of the day will eat our hybrid seed. It'll be turned into bread, it'll be turned into chapati, roti. It has to be okay. So what we have found is that the quality is intermediate between the two parents. So you can almost predict, based on the parents, what the hybrid will be. It sits right in the middle. And here I've looked at two characteristics: dough strength, that's R-max, and extensibility, that's the stretchability of the dough. Compare that to the very best Australian export wheat, what we call Prime Hub, the premium grade that we get the highest price for. And we made hybrids on that premium grade wheat there. They're all crosses with this line called Suntop, which is in orange. You can see our parent was a little bit weaker in dough, and that's reflected in the R-max, although we have one hybrid there that in fact is a different female and it's equivalent, but the extensibility was equivalent to or even better. So we don't think quality is an issue. If you know what the quality of your parents are, you can predict your F1 with 100% certainty. But we can't forget this. We want hybrids also to be known in the market as good to eat, good taste. And that's important in Australia too. So we estimate we've been creating these heterotic pools. This is getting a little bit more technical now. This is for the breeders in the room. And what we do is test an awful lot of hybrids, and we have done that over many years, and then we estimate the effect of the female. At the same time, we maintain diversity for rust resistance in our two pools, and we make sure that we have the market quality in the two pools. Very important. Now, when we estimate the effect of a female, we standardize everything to 0. If it's greater than 0, it has a positive effect on yield. And we call this general combining ability. So the females here that are above the line, above that line, combine very well with a wide range of males. These are our elite females. This is what we're using in Australia to make new hybrids for market. And you do the same here. The more hybrids you test, it goes into a database and you improve these estimations. These are the ones we want. But we're also testing hybrids globally. We've actually taken hybrids all around the world to try and find out where the heterosis is.
how can we maximise hybrid vigor for farmers? Here in Pakistan, in Australia, in Africa, in Asia, in all over the place. And we did that by testing hybrids, the same set of hybrids, around the world. Now, this is a little complex, again, for the breeders in the room. This is just the result of that analysis. And what we were looking for were heterotic pools. And I've just labelled one right there. That group of sites, these are site vectors, that group of sites are a heterotic pool, different and distinct from everything else. That's what we're looking for. So we're able to use that global data to inform our work here in Pakistan and in Australia. But we also, because we can, and we have the technology, we genotyped this. In a sense, we took a very dense DNA fingerprint. And that allowed us to start looking at the genetics of hybrid vigor. And after all, for we breeders in the room, the genetics of hybrid vigor, that's what's really important. And I've just given you a comparison here of one chromosome comparing two locations, France and Narrabri, which is our major research station. And what I've done here is graph the physical map location of these markers against what we call the E-bluffs, or their response. And what I want to show, just not to bore everybody, that what contributes to heterosis in France is very different genetically to what contributes to heterosis in Australia. Really important. And that's the same here. You can see on this other one as well. So the message here is that we now know at the gene level, what gives you heterosis or hybrid vigor in any environment. Here in Pakistan, there in Australia, in South Africa, in Argentina, we're starting to understand the genetics of that vigor. We can make so much progress now that we have started to unravel that. But there are still some problems. We have to reduce the cost of seed production. Mixtures are the way. I think mixtures will be the way. We also need to breed what we call male and female characteristics. We want male lines, ideally, that expose their anthers before they break. That puts more pollen in the air. That means the seed set in your seed production system will be higher. That means more F1 seed for the market. So these are traits that have strong genetic control, but we are breeding for these. We need to take our hybrids to the market, to the farmers. Now, I know that's happening here. I saw some seed production on farm yesterday. I was very, very impressed. And I hear that hybrids are being tested on farm. On farm is key. Same in Australia. And we've been testing hybrids on farm. And here's an example of a hybrid on the left and the leading variety on your right. And we plant large strips on farm so the farmer can see the difference. And for the wheat breeders in the room and the farmers, I think you will see that the one on the left, you can see is higher yielding, right? More biomass. That's what it is. We are going to national testing very soon with these hybrids. And I found out today that Pakistan, Multan, has already put hybrids in national testing. Again, Pakistan is just ahead. And let me say, I just want to again reiterate the importance of the team. Fantastic team. This is some of the members yesterday in the field, about 200 kilometres from here, looking at seed production on farm. But we have also co-opted some team members, and this one is Zulfikar Ali, to speak at our field days in Australia. We have field days with many farmers coming, and Zulfikar has talked about hybrids in Pakistan to our farmers. So these exchanges are very important indeed. And I'd just like to finish with some acknowledgements. Norman Darby down there, he was supervisor on my PhD thesis too many years ago to mention, but the idea was his, of creating a genetic hybrid system, and it took many, many years to realise it. Just realising that plant breeding sometimes can be very fast with technology, but sometimes can be very slow if the problem is a difficult one. And on that note, I will conclude. Thank you very much. Thank you, Dr. Richard. It was an amazing information. Now I will call upon Professor Dr. Muhammad Ishfaq, who is Director of Institute Plant Protection from this university. जैसा कि हम जानते हैं कि वीट की प्रोडक्शन पूरी दुनिया में बाकी क्रॉप की निस्बत ज़्यादा होती है, और इसमें
प्रॉब्लम भी ज़्यादा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अक्रॉस दी वर्ल्ड पूरी दुनिया में वो रस्ट है। ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसके मद्दे मुकाबल गंदम की दूसरी बीमारियां बहुत पीछे रह जाती हैं, और रस्ट के अगेंस्ट ही ये हमारे साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं हाइब्रिड में कि ताकि इसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाए। तो इसमें जैसे अभी बताया रिचर्ड ने कि आप इसमें दो मुख्तलिफ हाइब्रिड का क्रॉस कर रहे हैं, F1, और जब F1 होती है तो इसमें आपका जो रस्ट के अगेंस्ट जीन है वो डोमिनेंट होता है, और रेजिस्ट जो अपना रस्ट है वो डेवलप नहीं हो सकती क्रॉस में। मेल जो है वो हमारा लोकल है, और उसमें मेल में इवन के जैसे हमने गैलेक्सी को देखा उसके ऊपर रस्ट खूब आती है, वो ससेप्टेबल है, लेकिन जैसे उसको हाइब्रिड में गया तो उसके ऊपर रस्ट नहीं है, वो उसको रेजिस्ट कर है। और हाइब्रिड का मेन मकसद ही जो है ना, रस्ट को जहाँ प्रोडक्शन को डबल ट्रिपल करने जा रहे हैं वहाँ बीमारी स्पेशली रस्ट को भी स्टॉप कर रही है। तो ये इसकी खूबी है। जितने भी हमने कल भी विज़िट किया, हमारे यहाँ भी ट्रायल लगा हुआ है, तो मल्टीपल लोकेशन में इवन सबसे पहले इस साल रहीम यार खां में रस्ट रिपोर्ट हुई है, लेकिन वहाँ हाइब्रिड ट्रायल लगे हुए हैं हमारे जिस पे बिल्कुल कोई रस्ट नहीं है। और यहाँ भी जो ट्रायल लगा यूनिवर्सिटी में वीसी ऑफिस की बैक साइड पे रस्ट है, लेकिन वहाँ सामने जस्ट 1-2 एकड़ के डिस्टेंस पे रस्ट अपना हाइब्रिड लगाई, इस पे कोई रस्ट का जो है ना एक भी स्पोर आप नहीं देख पाते। सेम विहाड़ी में हमने विज़िट किया है, तो रस्ट का जो रिस्पांस है अपना हाइब्रिड का रिस्पांस जो रस्ट का है वो उसको कुव्वते मदाफ़त डबल ट्रिपल दे रही, मीन के टू डेट तक ये बिल्कुल फ्री ऑफ रस्ट है। तो फार्मर के लिए मैं ज़रा थोड़ा सा रस्ट को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हम पिछले 3-4 सालों से ऑन द डायरेक्शन ऑफ वाइस चांसलर एक कमेटी बनी है जो विज़िट करती है पूरे साउदर्न पंजाब को, और हमारे साउदर्न पंजाब कह लें कि लास्ट ईयर तो ब्राउन रस्ट है, ये लास्ट ईयर में जो रस्ट है वो बहुत ज़्यादा आई है, और इस साल भी रस्ट फील्ड में मौजूद है। तो थोड़ा सा हम उसको ब्रीफ कर देते हैं। नेक्स्ट, रस्ट की बुनियादी तौर पर 3 किस्में हैं जिसको हम कॉमन ज़बान में कुंगी कहते हैं। 2 किस्में इसकी पत्ते पे डायरेक्ट अटैक करती हैं, और एक किस्म पत्ते और तने दोनों पे भी अटैक करती है। जो पत्ते पे अटैक करती है स्ट्राइप रस्ट, जिसको हम जर्द रंग की रस्ट भी कहते हैं, और दूसरी है बुरी रस्ट, ब्राउन रस्ट है, और तीसरी है जो तने पे और पत्ते के अपर एंड डाउन दोनों, ऊपर और नीचे दोनों साइड्स पे अटैक करते हैं, जिसको हम स्टेम रस्ट कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो स्ट्राइप रस्ट इसमें ये होता है कि लंबी धारियाँ बन जाती हैं जो एक दूसरे के मतवाजी चलती हैं, और इनका कलर येलो होता है, यानी जर्द रंग में होती हैं। और जो ब्राउन रस्ट होती है यानी भूरे रंग की रस्ट, उसमें आप ब्लाचेस दे सकते हैं, स्पोर के इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे, बड़े बड़े धब्बे बन जाते हैं जिसको, और ब्राउन कलर में होते हैं। और जो स्टेम रस्ट होती है उसमें काले रंग के धब्बे बनते हैं जो तने की रस्ट होती है। अब यहाँ देख सकते हैं ये हमारी जर्द रंग की रस्ट है, स्ट्राइप रस्ट जिसको कहते हैं। और फार्मर इंग्लिश नेम से वाकिफ हैं क्योंकि हम फील्ड विजिट करते हैं, उनको रस्ट के नामों का पता है। और ये येलो रंग की धारियाँ बनती है, आप देख सकते हैं। ये पिक्चर हमारी अपनी ली हुई हैं जो हमने अपने विजिट में ली हैं। तो ये रस्ट की सिचुएशन है, और इसमें आप इसकी जो प्रोग्रेस देख सकते हैं। सबसे पहले ऐसे स्टार्ट होती है जो वेरी लिटल है, हल्के हल्के धब्बे आएंगे, फिर आस्ता आस्ता बढ़ती जाएगी, और उसके बाद एंड पे आप देख सकते हैं कि इसमें वेरी सीवियर फॉर्म में आ जाती है, जिसको हमने उधर बड़ा करके दिखा दिया। ये हमने इधर रोदखोई का एरिया डीजी खां से आगे जंपर, और उस एरिया में हम जब विजिट किया तो ये उसकी, तो आप देख सकते हैं ज़मीन भरी हुई है, नीचे से रस्ट का इतना अटैक था उसमें ना, ये हमारा। और इधर भी आप देख सकते हैं ये स्ट्राइप रस्ट थी। अब लीफ रस्ट जिसको हम बुरी रस्ट भी कहते हैं, इसमें नारंगी माल्टे रंग के रेडिश स्पॉट यानी धब्बे बनते हैं। डॉक्टर साहब ये डीजी खां का आपने इस साल का दिखाया, पिछले साल का? पिछले साल का सर, क्योंकि पिछले साल सिर्फ ब्राउन रस्ट आई है, उससे पिछले साल। और इसमें इनिशियल सिम्टम जो है लोअर कैनोपी पे होती हैं, और आस्ता आस्ता ये अपर कैनोपी की तरफ प्रोग्रेस कर जाती हैं।
ये स्टेम रस्ट खुशकिस्मती है कि हमारे यहाँ इतनी नहीं आती, बहावलपुर से आगे कभी कभार आती है, लेकिन ब्राउन रस्ट और यानी भूरी रस्ट और जर्द रस्ट जो है ये दो किस्में कुंगी की जो हैं वो हमारे यहाँ स्पेशली साउदर्न पंजाब में आती हैं। और स्टेम रस्ट कभी कभार बहावलपुर से अपर साइड पे आ जाती है ये। अच्छा, कुछ लोग जो है ना हर्बिसाइड स्प्रे कर दें या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं तो उस पर स्प्रे करना शुरू कर दें। हमने फील्ड में देखा है थोड़ी सी पीली होती है, क्रॉप फार्मर समझता है कि ये पीली हो गई है तो रस्ट आ गई है, और उनको मशवरे भी ऐसे मिलते हैं कि रस्ट आ गया स्प्रे कर दो। तो ये रस्ट नहीं होती, कुछ में न्यूट्रिएंट का, कुछ में हर्बिसाइड इंजरीज वगैरह आप देख सकते हैं। ये रस्ट टोटली डिफरेंट होती है। अच्छा, रस्ट अपना ऑफ सीजन पास करती है अल्टरनेट होस्ट में, जिसमें स्टेम रस्ट के लिए और स्ट्राइप रस्ट के लिए बारबेरस है। ये आप देखते हैं अगर फील्ड में, ये उसी प्लांट पे रस्ट आई होती है जिसमें वो अपना ऑफ सीजन पास करते हैं। कुछ में ये महोनिया है, ये आम वीड्स हैं हमारे इधर भी, इस पे भी रस्ट अपना ऑफ सीजन पास करती है। और कुछ लोकल जो वीड्स हैं उन पे भी इसने अपने आप को अब फिक्स कर लिया, एडजस्ट कर लिया। ये आप देख सकते हैं कुछ ग्रासेस हैं, वाइल्ड ग्रासेस हैं या दूसरी ग्रासेस, उन पे भी रस्ट को एज ए अपना ऑफ सीज़न यानी अल्टरनेट होस्ट की मुतबादल होस्ट के तौर पे जब एक गंदम कटाई हो जाती तो अगले सीज़न तक वो अपना पीरियड उस पर गुजार लेती है। ब्लू ग्रास है, ये देख सकते हैं आप इसकी। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि ससेप्टेबल वैरायटी मौजूद है, यानी ऐसी वैरायटी जिसके ऊपर डिजीज़ आराम से आ जाए और उसमें कुफ्ते मदाफत ना हो, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन ये भी है कि टेम्परेचर की एक रेंज होती है और उसका टाइम पीरियड भी, यानी अगर कोई रेन है, ड्यू पीरियड अगर उसमें उसका है तो कम अज़ कम अगर जो स्ट्राइप रस्ट है जिसको हम येलो अपना जर्द रस्ट कुंगी कहते हैं, उसमें 10 से 20 का टेम्परेचर 6 से 8 घंटे प्रीवेल करे तो फिर वो स्टार्ट होती है। इन स्पाइट ऑफ दैट मीन कि उसका इनाकुलम भी मौजूद है फंजाई का, फंगस का, और उसके बावजूद होस्ट भी जो है वो कुव्वत मदाफ़त नहीं रखता, लेकिन अगर इतना टेम्परेचर और मॉइस्चर उसको मौजूद रहे इतने पीरियड के लिए तो फिर चांसेस उसके स्टार्ट होने के हो जाते हैं। इसी तरह ये तकरीबन जनवरी में स्टार्ट हो जाती है, जनवरी के हाफ के बाद। और जो अपना भूली रस ब्राउन कुंगी है वो 10 से 25 यानी इसका आगाज़ हमारे मौसम में फरवरी में नॉर्मली स्टार्ट हो जाता है, और इसके लिए टाइम पीरियड भी 3 से 12 घंटे उसको जो है ना ये ड्यू या मॉइस्चर वगैरह अवेलेबल है। स्टेम रस जैसे कि मैंने कहा कि हमारे यहाँ इतनी कामा नहीं है, इधर बहावलपुर से आगे वो भी ऑफ एंड ऑन, जब नीलगिरी वैलीज़ जो है इंडिया की वहाँ से इसका इनाकुलम आता है तो सूरत में आती है। तो ये 15 से 30 और 6 से 8 आवर्स इसके लिए टेम्परेचर और टाइम पीरियड होना ज़रूरी है। कुछ वैराइटीज़ हैं जो हमारे साइंटिस्टों ने डेवलप की हैं, हमारे ब्रीडर्स ने, जो कुछ इरीगेटेड एरिया यानी जहाँ आपाशी का सिस्टम अवेलेबल है वहाँ उन्होंने रिकमेंड की हैं, और कुछ ऐसी हैं जो बरानी एरिया में, रैनफील्ड एरिया में, इनको मैंने यहाँ मेंशन किया है। और कुछ वैरायटी जैसे गैलेक्सी है, सहर है, वो बड़ी हाली ससेप्टेबल मीन के उनमें कुव्वत मदाफ़त ख़त्म हो चुकी है, तो वो नहीं, ये वैराइटीज़ अभी जो कुछ ना कुछ कुव्वत मदाफ़त दे रही हैं तो उनको यहाँ मैंने रिकमेंड किया। अगर फार्मर जब तक हमारी हाइब्रिड मैदान में नहीं आ जाती तो आप इनको प्रेफर कर सकते हैं। कुछ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं, ये देखा गया जब हम फील्ड में गए हैं कि जो अर्ली सोइंग है उस पर रस्ट नहीं थी, मीन कि जो 15-20 नवंबर से पहले ग्रो कर ली तो वो रस्ट के अटैक में इतनी नहीं थी जितनी जो लेट स्पेशली जो दिसंबर में ग्रो होती हैं उनमें जो है ये कुंगी की बीमारी ज़्यादा पाई गई है। उसके अलावा एक्सेसिव इरिगेशन या नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का जो है ना उससे भी जिन ज़िम्मेदारा ने अवॉइड किया, प्रॉपर एक रिकमेंडेड डोज इस्तेमाल किया, उनकी क्रॉप भी हेल्दी थी। और पोटाश का जो है पोटाश फर्टिलाइज़र जो है ये चूँकि इम्यूनिटी को इन्हांस करती है और ये भी रिकमेंड की थी हमने फार्मर को। अच्छा, इसके बावजूद आज कुछ प्रोटेक्टिव फंजीसाइड हैं, जब इन्फेक्शन आ जाती है तो उसको स्लो डाउन करने के लिए या स्टॉप करने के लिए मज़ीद ना हो तो कुछ ये ट्राइजोल ग्रुप के फंजीसाइड हैं और स्ट्रोबिल्यूरन ग्रुप के फंजीसाइड हैं जो रिकमेंड किए जाते हैं। लेकिन ये लास्ट स्टेज है जब आप समझते हैं कि अब कंडीशन फेवरेबल है और आप अपनी क्रॉप को दाएं बाएं देखते हैं आ गई तो प्रोटेक्ट करने के लिए यानी हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर
पहली बात तो ये जो रिचर्ड ने भी बताई और डॉक्टर साहब ने भी बताई कि जो हमारी वैरायटियाँ ब्रीड होती हैं, मसलन इन्होंने गैलेक्सी का नाम लिया, अकबर का नाम लिया, तो इनिशियली जब वो रिलीज होती है वैरायटी रिलीज सिस्टम में रस्ट का स्कोर जरूर काउंट किया जाता है, वो वैरायटीज रिलीज की जाती है जिसपे रस्ट ना आ रही हो। लेकिन जब 2-3 साल गुजरते हैं तो वो जो सीड सिस्टम है हमारा उन्हीं वैरायटीज को ससेप्टेबल बना देता है और उससे रस्ट आती है, जिसको हम ये अपनी और काफी डैमेज करती है। हाइब्रिड का फायदा ये है कि उसका हर साल नया सीड बनता है, सो यू मेक सीड न्यू एवरी ईयर, हर साल नया सीड चूंकि बनता है इसलिए उस पर रस्ट के चांसेस कम होते हैं। वो वैरायटी का जो सीड डिटीरियोरेशन का सिस्टम है वो उसमें नहीं होता, इसलिए उस पर रस्ट के चांसेस कम है। दूसरी जो अहम बात रिचर्ड ने बताई कि रस्ट जो है मुख्तलिफ रेसेस का, वो जो उसने YR और SR लिखे हुए थे, उसका कॉम्बिनेशन होता है। तो जब आप मेल में कमी हो, फीमेल में उसकी स्ट्रेंथ हो, मेल में उसकी कमी हो, तो दोनों को वो कंपनसेट कर देती है और उस कंपनसेशन की वजह से रस्ट की डिजीज नहीं आती। तो ये मैं चाह रहा था कि जी आपको मजीद डिटेल से बता। अब मैं फॉर्मर इंगेजमेंट प्रोग्राम के हेड हैं डॉक्टर मिस्टर नसीरुल्लाह खान फ्रॉम फातिमा ग्रुप, उनको इनवाइट करूंगी कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। Dr. Richard, Dr. Rebecca and Dr. Negash, welcome to you all in Pakistan, especially in Multan, and thank you very much for sharing a very good knowledge on hybrid wheat technology. और सबसे पहले मैं जनाब मोहतरम फ़खर इमाम साहब, आपका सर बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, और डॉक्टर वाइस चांसलर आसिफ अली साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने ये मौका प्रोवाइड किया। और ये जो टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान में आई, हम पिछले 3-4 साल से उनके साथ ये काम कर रहे हैं और मुझे इसमें काफ़ी फ्यूचर में पोटेंशियल नज़र आता है, सिर्फ वीट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, और भी 2-3 क्रॉप्स के। आई विल शेयर विद यू कि बट कमर्शियल गेन्स और द बेनिफिट्स दिस हाइब्रिड विल ट्रांसलेट इनटू अदर क्रॉप्स एज वेल। मोहतरमा जनाब अनीला रबानी खान साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अराइवल। खालिद खोकर साहब और डॉक्टर मीकन साहब DG रिसर्च से भी तशरीफ लाए हैं, डॉक्टर आबद साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारी अक्सर इनसे डिस्कशन भी रहती, तो थैंक यू वेरी मच जी। और ख़ास तौर पे जो फार्मर्स हैं स्पेशली जिनके लिए ये सारा शो जो है ये बनाया गया है और उन्हें बहुत ही इनिशियल स्टार्ट के ऊपर हम जो है साथ लेके चल रहे हैं कि एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी है क्या और ये क्या बेनिफिट करेगी। मेरा चूँकि जी आपको पता है ताल्लुक़ है फर्टिलाइज़र से, और मेरी आई एम बेसिकली एग्रेरियन, लेकिन मेरे ज़रा सोचने का अंदाज़ जो है वो कुछ कमर्शियल सा होता है जी, कि अगर कोई आप स्टेप कोई लेते हैं तो उसका नेशनल इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, लोगों की ज़िंदगी में क्या फ़र्क आएगा। और इसी चीज़ को जब डॉक्टर साहब ने हमसे 3-4 साल पहले बात की तो मुझे ये समझ आई कि ये टेक्नोलॉजी तो अपनी जगह पे है और ये इम्प्रूव करती रहेगी, लेकिन अगर ये हमारी सक्सेसफुल हो जाती है तो पाकिस्तान के बेशुमार मसाइल का हल इसमें पड़ा हुआ है। बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर की ट्रांसफॉर्मेशन जब भी मुमकिन होएगी वो वीट से होएगी, किसी और क्रॉप से नहीं होगी सर। द रीज़न इज वी आर गुड इन मेस, वी आर गुड इन राइस, वी आर गुड इन अदर क्रॉप्स एक्सेप्ट 2 क्रॉप्स हैं आपकी जो मेजर प्रॉब्लम है, दैट इज़ वन इज़ वीट जो हमारी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर रही है, और सेकंड है आपकी कॉटन जो आपकी इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों क्रॉप्स के अंदर एक क्रॉप पिसती है हमारी, और वो है ऑयल सीड क्रॉप्स, जिसके हम 4 बिलियन रुपीस जो है वो इंपोर्ट बिल उसका जो है वो बियर कर रहे होते हैं। अगर हमारी हाइब्रिड जो है वीट कामयाब होती है तो देन वी हैव सॉल्यूशन फॉर 3, और ये शायद कभी भी हमने सोचा भी ना हो, अगर जैसी टेक्नोलॉजी आती है बहुत सारी चीज़ों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल रही होती है। तो आज बेसिकली जो फ़खर इमाम साहब से स्पेशली मैं चाहूँगा कि जो मैं कॉन्सेप्ट जो एक्चुअली प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, माइट बी आफ्टर 5 years 10 years आफ्टर ये मटेरियलाइज हो, बट वी आर वर्किंग ऑन दिस,
और जो हाइब्रिड की स्पेशली एग्रीमेंट साइनिंग तक जब हम जा रहे हैं, मैंने पिछले 2 साल में देखा जी, इसमें जब हमने इनिशियल ट्रायल्स किए थे तो इसमें पोटेंशियल था दैट वाज मोर देन 100 मोन पर एकड़, बट ऑन स्मॉल पीसेस। फिर उसके बाद हमने खुद F1 बनाया जी, और फिर उसको हमने डिफरेंट साइट्स पे भी लगाया। जो मेरा एक्सपीरियंस ये है, ये मैं अंडरस्टैंड इसको ऐसे नहीं करता कि ये कुछ 100 मन 80 मन 70 मन की को हम बातें करेंगे। बीइंग हाइब्रिड, ज़ाहिर है हाइब्रिड के रूट सिस्टम के अंदर ना एक ख़ास जान होती है सर, और ये मैंने देखा है जहाँ से मैं अपनी नॉर्मल कमर्शियल वैरायटी से 35 मन पैदावार लेता हूँ, यहाँ से मैं 48-50 मन निकालता हूँ, और जहाँ से एक आम फार्मर 50 निकालता है, नेचुरली वो इससे ज़्यादा निकाल रहा होगा। तो जो बुनियादी मकसद ये है कि हम किसी तरह अगर 1.2 टन पर एकड़ से 1.6 टन पर एकड़ पे आ जाए, दिस इज माई इंटरनली फील कि इसमें बहुत ही आराम से ये पोटेंशियल है कि आपकी एवरेज यील्ड को ये 1.6 टन पर एकड़ तक लेके जा सकता है, विच इज हार्डली 40 मन पर एकड़, दो इट विल टेक टाइम। और इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट जो है टेक्नोलॉजी में होगी, फार्मर प्रैक्टिस में होगी, उसकी मैनेजमेंट के अंदर होगी, जो भी इसकी वर्षों की नॉलेज के लिए ज़रूरी है। तो बेसिकली ये जो है प्रेजेंटेशन ये है, तो जो फ्यूचर को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, इट्स मोर बेसिकली फॉर देम, बट फॉर फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड बड़ा करना ज़रूरी है कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस टेक्नोलॉजीज, और इसमें कितना ज़रूरी है कि हम अपनी गंदम की फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए जो मैक्सिमम किया जा सकता है हमें करना चाहिए। फ़खर इमाम साहब जब थे मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी, तो इनका एक कदम जो है वो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, और अक्सर ये डिस्कशन भी हमारी रहती थी कि फ़खर इमाम साहब ने पहले आते ही जो सर्टिफाइड सीड की अवेलेबिलिटी है फार्मर्स को, उसको बड़े कमाल से इंश्योर किया था। और इनके दौर में जो perhaps 27.2 मिलियन टन जो वीट आपका रिकॉर्ड है, ये कभी हमने अचीव नहीं किया था जी। द रीज़न वाज बेसिकली बिहाइंड द फोर्स जो थी वो थी जो इनकी एफर्ट थी फार्मर्स को सर्टिफाइड सीड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा करने के लिए। तो दो एंड्स हैं, एक तो सर्टिफाइड सीड ज़्यादा हो, और दूसरा जो आपकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है ये उसके अंदर ना फ्यूजन है, तो इससे हम जो है इंशाल्लाह ताला ये इशू रिजॉल्व कर सकते हैं। ये जी एक छोटा सा स्नैपशॉट है पाकिस्तान की इकोनॉमी का। पाकिस्तान के टोटल अगर आप देखें तो इस वक्त हमारी कोई 80 बिलियन US डॉलर की इंपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट हमारी अराउंड कोई 31-32 बिलियन US डॉलर की है, जिसमें तकरीबन 20 बिलियन US डॉलर जो है आपका टेक्सटाइल कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। और जो डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट है हमारा, दैट इज 48.5 बिलियन US डॉलर। अगर हम हाइब्रिड वीट सीड टेक्नोलॉजी में या 40 मन फी एकड़ पे पैदावार अपनी गंदम की कर लें सर, तो हमें 14.5 बिलियन US डॉलर का इस मुल्क को फ़ायदा हो सकता है। अब एक्सप्लेन के हाउ ये 14.5 बिलियन हम किस तरह से गेन करेंगे। दिस इज बेसिकली ड्यू टू वर्टिकल ग्रोथ, क्योंकि इस वक्त हम जो है बुनियादी कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करके आगे चलता हूँ, सो दैट जब नंबर्स आए तो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो। हम इस वक्त जो 26 मिलियन मेट्रिक टन गंदम लेते हैं, ये कुछ तकरीबन 22-23 मिलियन एकड़ से लेते हैं। अगर आप इसकी यील्ड जो है 40 मन पे ले जाएं, तो सब हम सर 18.5 मिलियन एकड़ से 30-31 मिलियन टन ऑफ गंदम उठा सकते हैं। 30-31 मिलियन टन ऑफ गंदम का मतलब ये है कि रबी के अंदर आपके पास तकरीबन 4.5 मिलियन एकड़ फारिग मिलेंगे। जो हम कहते हैं कि ऑयल क्रॉप्स कंपेटिटिव क्रॉप्स हैं विद वीट, उसके लिए आपको स्पेस मिलती है, और जो आप 4 बिलियन US डॉलर इंपोर्ट पे लगा रहे हैं ऑयल क्रॉप्स की, वो स्पेस आप 3-4 माह के लिए फिल करते हैं। उसके बाद 4.5 मिलियन एकड़ अर्ली कॉटन के लिए मिलते हैं, और अर्ली कॉटन में हमने देखा यील्ड डबल होती है। ये फ़खर इमाम साहब से हमने सीखा है पिछले 2 साल से, अभी तो काफ़ी बड़े लेवल पे लेके रहे हम भी पीरोवार में ये।
अभी अर्ली कॉटन के लिए लेके आ रहे हैं। और अगर एग्जिस्टिंग सर हमारे पास 5 मिलियन एकड़ कॉटन एरिया है, 4.5 और डाल दें, किसी ने ख्वाब भी नहीं देखा होगा पाकिस्तान में 9.5 मिलियन एकड़ जो है वीट के लिए मिल सकते, सॉरी कॉटन के लिए मिल सकते हैं। और वहां से आपकी जो प्रोडक्शन है मेरी असेसमेंट के मुताबिक आप 20 मिलियन बेल पे जाएंगे। तो आई नीड सर दिस इंडस्ट्री फॉर द एक्सपोर्ट्स की ये जो हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि इस सारी बात का मतलब ये है कि हमारा जब भी ट्रांसफॉर्मेशन या आपकी एग्री का सॉल्यूशन निकलेगा सर वो वीट से निकलेगा। और इसी कॉन्सेप्ट से 2-3 से पहले जब ये डॉक्टर साहब ने हमें ये बात बताई तो शायद वी आर नॉट लुकिंग फॉर द मनी, वी आर नॉट लुकिंग फॉर कमर्शियल गेन्स, वी आर लुकिंग कि ये वो रास्ता है जहाँ से किसान की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, पाकिस्तान के माशी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल निकल सकता है, और इसके ऊपर हम सबको ना बहुत जॉइंटली एफर्ट करने की ज़रूरत है। और सेकेंडली ये जो हम बात कर रहे हैं दिस इज बेसिकली वर्टिकल ग्रोथ, बट इट्स मेनली जो है ये वीट के ऊपर फोकस होगा। ये 14.5 को मैं एक्सप्लेन करने के लिए सारी मैंने डिटेल्स बताई। और फिर हमारे पास जो है बहुत सारी फैलो लैंड्स पड़ी हुई है सर जिनको अंडर एग्रीकल्चर लाने की ज़रूरत है। जो इस वक्त हम जो कुछ जिस एग्रीकल्चर के साथ जो काम कर रहे हैं अगर इसी के साथ इतना ही काम हम कर लें जो शायद अगले 20 साल में हम कर पाएँ, 30 साल में कर पाएँ, लेकिन ये बताते खुद को तकरीबन 34 बिलियन का सर डोरमेंट पोटेंशियल है पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के लिए, जिसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, फॉरेन कोलैबोरेशंस रिक्वायर्ड है, गवर्नमेंट की को बहुत सपोर्टिव पॉलिसीज रिक्वायर्ड है। जो आप डॉक्टर आसिफ साहब बात कर रहे होते हैं, खालिद साहब बात कर रहे होते हैं कि कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है इस मुल्क में लाना इंतहाई ज़रूरी है, सो दैट कि ये कॉर्पोरेट फार्म्स जो हैं ये इसमें इन्वेस्टमेंट करें, ये टेक्नोलॉजीज लेके आएँ, लोगों के साथ जेवीज करें और यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म करने में मदद इस तरह से होगी कि ये यहाँ पे टेक्नोलॉजी एडॉप्शन पे काम करें, मशीनों की एडॉप्शन पे काम करें, सोल्यूशंस डेवलप करें और फिर ये फार्मर तक लेके जाएं। ये है बेसिकली रास्ता ट्रांसफॉर्मेशन का, ये एक दूसरा वे है। नेक्स्ट दिस इज जनरली सर एक ओवरव्यू है कि हम इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एग्रीकल्चर तकरीबन 15,000 अरब रुपया सालाना जो है नेशनल इकोनॉमी में डाल रहा है सर। और ये 15,000 तक लेके जाने के लिए फिर मैं फ़खर इमाम साहब के शुक्रगुजार हूँ कि ये जिस साल के नंबर हैं उस वक्त पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा यील्ड की थी इन डिफरेंट क्रॉप्स में। तो ये 15,000 अरब रुपया ये प्राइमरी प्रोडक्शन है सर हमारी। इसको सेकेंडरी टर्शरी प्रोडक्ट्स में कहीं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में जाएं, लेकिन हम हर वक्त फाइटिंग में रहते हैं कि हमारी गंदम पूरी नहीं होती। अगर गंदम का आपका सोल्यूशन निकलता है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आप एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या एग्री प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट के लिए आपके पास बहुत स्पेस निकल सकती है। ये थोड़ा सा सर हिस्टोरिकल हमारी परफॉर्मेंसेस जो हैं डिफरेंट कंट्रीज की क्या क्या, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन और बाकी कंट्रीज जो है वो कितना कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम कहाँ पे खड़े हैं। ये सारा दिखाने का बेसिकली मकसद ये था। मैं ये जो कंट्रीज हैं आपके जो विंटर वीट वाले लगाने वाले इनके साथ तो हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमारी वीट 4 माह 4.5 माह की होती है और मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि हम इनसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। द ओनली पर्पज इज बेसिकली इसमें एम ये है कि हम इस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से ये जो हम बात कर रहे हैं कि 1.2 इस एग्जिस्टिंग और 1.6 टन पर एकड़ तक अगर हम चले जाए तो हमारे बहुत सारे मसाइल जो है इससे हल हो जाएंगे सर। इस साल भी अगर आप देखें तो हमें कुछ तकरीबन $2 बिलियन रिक्वायर्ड होंगे वीट की इंपोर्ट के लिए, तो उसकी सब्स्टिट्यूशन भी निकल रही होगी और हमारे यहाँ ये जो इन्फ्लेशन और ये गुर्बत है और महंगाई है इसका भी हल यहीं से निकलेगा जी। अब क्योंकि इसी के साथ सर आपकी कनेक्टेड है कॉटन, तो कॉटन का अगर जिक्र न करें तो फिर कहानी मुकम्मल नहीं होती। हमने 2014 में अगर आप देखें तो 14 मिलियन बेल्स पे थे और विद इन फ्यू ईयर्स आप देखें हम 2022 में अभी भी नंबर में है 4.6 मिलियन बेल्स का है। मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के 5 कर रहा हूँ जो कि तकरीबन 64% डिक्लाइन है सिंस
2014, और इसमें भी मेजर इशू हमारा जो है वो सीड का है, ये वो। लेकिन इसको भी हम अंडरस्टैंड इस तरह से करते हैं कि पाकिस्तान ने किसी हद तक सर कॉटन के अंदर सक्सेस ले ली हुई है, और ये सक्सेस जो है डिमॉन्स्ट्रेट की है जनाब फखर इमाम साहब ने। ये जो 40 मन 50 मन जो यील्ड्स हैं, ये वो जो अर्ली विंडो है उसकी वजह से है। तो हमारे पास इस वक्त ये वैरायटीज़ हैं, उनमें ये पोटेंशियल है कि अगर हम उनको फेब मार्च में कहीं लेके आए तो वी कैन गेट बेटर यील्ड्स फ्रॉम देम। तो वो सोल्यूशन जब ही निकलेगा जब हम उसके लिए कोई स्पेस क्रिएट कर रहे हो। जब ये सारे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए गए थे वेरी फर्स्ट ईयर इन 19 और 20, तो उस वक्त ये डिफरेंट कंपनीज को डिफरेंट एरियाज के अंदर ये हाइब्रिड जो हैं ये प्रोवाइड किए गए थे, और उसमें जो एवरेज यील्ड थी नेशनल दैट वाज 47 मॉन्स पर एकड़। हम ये कह रहे हैं कि विद टाइम हम 40 मन तक चले जाएं अगर, तो ये बहुत बड़ा सोल्यूशन सर इस कॉम के लिए निकल सकता है। हम पिछले कुछ 3-4 साल से इस पर काम कर रहे हैं जी। ये अभी भी रिसेंट टाइम के पिक्चर्स हैं, ये हमने पीरोवाल में ना इनके जो 5 हाइब्रिड्स हैं ये उनकी लाइन्स की पिक्चर है। होपफुली मेरे ख्याल विद इन वीक टाइम ये टेस्ट वगैरह इनके आने शुरू हो जाएंगे। और जो बात डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इससे रस्ट फ्री, ये 100% सर रस्ट फ्री हैं। जो हमारी लोकल लाइन्स लगी हुई वहाँ पे रस्ट आया है, लेकिन बिल्कुल 7 लाइनों में लगे हुए इस पर नहीं आया। तो बिल्कुल ऐसे हमने कहा था कि अभी इसको नहीं करना, देखते हैं कि कितना रेजिस्ट करता है ये। इट्स 100% हैज रेजिस्टेंस अगेंस्ट येलो रस्ट। ये फखर इमाम साहब की नज़र है सर, ये स्टाइल है डॉक्टर साहब आपकी कि ये वो ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता है कि यहाँ से अगर हम वीट में ये सोल्यूशन लेके जाएं तो ये आपका ऑयल सीड के लिए सर स्पेस क्रिएट होती है, जो कि आपको 0.6 बिलियन US$ की इंपोर्ट सब्सिडी जो है ये सिर्फ आपके सरसों और ये वो इस तरह के जो है ये अभी मैंने इसमें आगे जाकर कहते हैं जब आप कॉटन बढ़ाएंगे तो कॉटन ऑयल कितना प्रोड्यूस उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो यहाँ से तकरीबन 11.9 बिलियन US$ का आपको कॉटन में इतना बेनिफिट मिलेगा ओनली इंक्रीजिंग यील्ड ऑफ व्हीट। और ये बहुत बड़ी स्पेस है जो आपके पास ये ऑयल सीड, मैंने इसके ऑयल केक्स की कोई वैल्यू नहीं डाली हुई, उससे आपका डेयरी डेवलपमेंट के अंदर कितना इम्पैक्ट आएगा, दूध की आपकी अवेलेबिलिटी कितनी बढ़ेगी। दिस इज द लास्ट स्लाइड। जस्ट आप लोगों से दोस्तों से इंडोर्समेंट लेनी थी कि हमारे सोचने का तरीका ठीक है, और ये जो टेक्नोलॉजी इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं इसमें सबको मिलकर करना चाहिए, बिकॉज ये इतना बड़ा लैंडस्केप है सर, 22-23 मिलियन एकड़ को सीड प्रोवाइड करना ये बहुत जान जोखों का काम है, और सबको इसमें आके अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। अब हैं मिस्टर खालिद खोखर जो कि किसान इत्तेहाद के सदर भी हैं। वो हमें बताएंगे कि किसानों का क्या रोल रहा है फूड सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान में। जी अस्सलाम वालेकुम जी, माज़रत मेरा गला ख़राब है, फिर मुझे अभी हुक्म मिला तो मैं हाज़िर हो गया हूँ। अभी जो बातचीत चल रही थी तो उससे यही लगता है कि बीज जानदार फसल शानदार, डिपेंडेंट तमाम जो बातचीत है वो बीज के ऊपर ही है। और हमारे पास जो सबसे बड़ी कमी है वो बीज की है, क्योंकि गंदम में हमारी जो पैदावार आज से, जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, जो आज से 40-50 साल पहले बढ़ी थी, आज तक वही हम उसे आगे लेके नहीं जा सके। इस वक्त हम तकरीबन मेरे ख्याल में 27 मिलियन टन हमारी टोटल प्रोडक्शन है, और हमारा जो यहाँ पे जो हमारी कंजम्पशन है वो कोई 30 मिलियन टन की है। 3 मिलियन टन हमें हर साल इंपोर्ट करनी पड़ती है, जिस पे हम बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, तकरीबन $1.5 से $2 बिलियन। लेकिन माज़रत के साथ कहूँगा कि हम जो फार्मर हैं उनको डॉलर दे के गंदम ले आते हैं, अपने फार्मर पे वो खर्च नहीं करते, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हम एग्रीकल्चर से टोटल को 14 से 15 हज़ार अरब रुपए की जो प्रोडक्शन ले रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर अगर हम पिछली 3-4 दहाइयों में देख लें, हमारी उसके ऊपर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जिस तरह हाइब्रिड की बात हो रही है कि यानी कि वो बीज जानदार होगा और ऑटोमेटिकली वो फसल भी शानदार होगी। मैं तो ये कहूँगा जिस तरह रस ये वो सारी चीज़ें आ रही हैं, क्या मुझे मेरे इल्म में नहीं है क्या दुनिया में GMO वीट भी आ चुकी है?
जो कि मेरे में नहीं है, जिस तरह मक्की आ गई है, राइस आ गया है, बाकी काफ़ी फसलों में GMO आ चुका है। इस तरह हम बाहर से बहुत सारी GMO चीज़ें इंपोर्ट भी कर रहे हैं, हम खा भी रहे हैं, हालांकि यहाँ पे पाबंदी है। उसके बावजूद इन्हें अगर वो पाबंदी है तो फार्मर के लिए है, बाकी किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। हालांकि होना ये चाहिए, वो पाकिस्तान में भी GMO बेस पे भी आना चाहिए, बाकी चीज़ों के भी GMO हमें अलाउड करना चाहिए। अगर दुनिया खा रही है तो हम भी खाएं। असल बात है सारी रिसर्च की जी। हमने रिसर्च के इदारों के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की, हमारा रिसर्च का बजट बहुत ही कम था। फिर काश्तकार के साथ जो प्रॉब्लम रहा वो रहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में उसे लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिला। रीजन वाइज हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दुनिया से कहीं ज़्यादा है। इसीलिए अगर आप गंदम को लें, जो हमारे पास इस वक्त हाइब्रिड से पहले बीज है, वो भी 50 मन 60 मन तक लोग ले जाते हैं। वजह फाइनेंशियली उनकी पोजीशन मजबूत होती है। वो 2 बैग DAP डालते हैं, 2 पोटाश डालते हैं, 3 से 4 यूरिया डाल देते हैं। अब इस साल देख लें कि इस साल हमारी कंजम्पशन कितनी है फर्टिलाइज़र की, कोई 6.8 मिलियन टन आपकी यूरिया। बताते हुए शर्म आती है कि आपकी जो फास्फोरस है वो 14-15 मिलियन टन से ऊपर नहीं है। और 1.2 मैं उसमें 1.2 DAP है, मैं बाकी फास्फोरस मिला के मैं बात कर रहा हूँ, उसमें SSP नाइट्रोफास ये मिला के मैं बात कर रहा हूँ जी, वो 14 से 15 बनती है जी। और पोटाश 1 लाख टन सिर्फ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि रेशो के मुताबिक जितनी हम DAP यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आधा यानी कि 34 हमने का 34 हमने करना था मिलियन टन इसके 3.4 मिलियन टन हमने करनी थी पोटाश, और इसी तरह 3.4 फास्फोरस हमने इस्तेमाल करनी थी। फिर हमारी पैदावार इसी बीज के साथ ही हम एवरेज 40 मन आराम से ले जाते, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से खादों की बाजों का, जिस तरह अब यूरिया का मसला बना हुआ है, अवेलेबल नहीं है, प्लांट बंद पड़े हैं, काश्तकार लाइनों में लगा हुआ है। 2 ही तो पाकिस्तान में लाइनें हैं, काश्तकारों की यूरिया के लिए और शहरियों की आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं। इन्हीं अगर हमने इन लाइनों को ख़त्म करना है, इन चीज़ों को ख़त्म करना है, तो हमें सीरियस लेवल पे सोचना होगा, हमें तवज्जो देनी होगी कि हमने करना क्या है। हमारे यहाँ जो पॉलिसियाँ बनती तो बहुत अच्छी है, लेकिन उस पर अमल दरामद ज़ीरो होता है। मैं बहुत सारी मीटिंग्स में जाता हूँ, हमने कपास का सत्यानाश, कपास को बर्बाद हमने खुद किया है। अभी नसीरुल्लाह खान साहब जिस तरह फरमा रहे थे कि सैयद फ़खर इमाम साहब ऑन एवरेज अगर 50 मन ले सकते हैं, बाकी काश्तकार क्यों नहीं ले सकते। हमारी ऑन एवरेज पैदावार बताई ज़्यादा जाती है, लेकिन इस साल जो थी मेरे ख्याल में 8-9 मन से ज़्यादा नहीं बनती, वो मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ। वजह हमारे काश्तकार को ना अवेयरनेस दी जाती है। एक्सटेंशन डिपार्टमेंट हमने टोटल ख़त्म कर दिया है, टोटली उसको और काम दे दिया है। वो आज पेस्टिसाइड चेक करेगा, फर्टिलाइज़र चेक करेगा, जुमा बाज़ार, इतवार बाज़ार, ये काम करेगा। काश्तकार के पास वो बिल्कुल नहीं जाएगा। यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो रोल होना चाहिए था वो इस वक्त रोल नहीं है। काश्तकारों के पास सिर्फ 2 चीज़ की कमी है, एक फाइनेंशियल इशू है और एक एक्सटेंशन सर्विस का इशू है। अगर ये 2 इशू उसके रिजॉल्व हो जाए इसी सीड के साथ, हाइब्रिड के साथ, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, जिसका नक्शा मोहतरम नसीरुल्लाह खान साहब ने दिया है। यकीन कर लें कि मुझे इतनी खुशी है कि मैं अपने जज्बात का लफ्ज़ों में इहाता करके नहीं बता सकता कि हमारे मुल्क में भी ऐसा हो सकता है कि हम 2 करोड़ बेल पे पहुंच जाएं, कॉटन पे। ऐसा मुमकिन है, मुमकिन तो है। हम 1 करोड़ 44 से वापस आए हैं। 92 में हम 1 करोड़ 28 से, इंडिया 1 करोड़ 10 था। आज इंडिया 4 करोड़ से ऊपर बेल पे ले गया और हम 4.6 पे आ गए हैं। वजह कि हमारी तरजीहात में ज़राअत नहीं है, हमारी तरजीहात में पाकिस्तान नहीं है। हम बैठ के पाकिस्तान के लिए सीरियस लेवल पे कभी नहीं सोचते। हमने रिसर्च के लिए वो बजट नहीं दिया। हम रिसर्च के इदारों से बात नहीं कर सकते जाके, क्योंकि उनके पास बजट नहीं है, उनके पास तो तनख्वाहों के पैसे नहीं होते। जिस मुल्क में साइंसदान एहतजाज कर रहे हो तनख्वाह के लिए, वो मुल्क खाक तरक्की करेगा। जिस मुल्क में रिसर्च के इदारों को अगर तनख्वाह ना मिल रही हो 6-6 माह से, तो उस मुल्क में ये कहा जाए कि यहाँ पे ज़राअत तरक्की कर जाएगी। हमारी जो टोटल इंपोर्ट है $80 बिलियन की है और हमारी एक्सपोर्ट $31 बिलियन की है। ये जो डेफिसिट है
इसको ख़त्म करने के लिए आपके पास सिवाय ज़राअत के और कोई चीज़ बाकी है ही नहीं। ना इंडस्ट्री आपके पास ऐसी है उसमें वैल्यू एडिशन नहीं है, ना आप IT में गए ना कहीं और गए, है तो आपके पास ज़राअत। उसी ज़राअत को आपने बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर दिया है कि गंदम इस वक्त फूड सिक्योरिटी दुनिया का नंबर 1 इशू है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। क्या वैसे शर्म नहीं कि आज तक पंजाब अपनी सपोर्ट प्राइस तय नहीं कर सका? अब भी नई कमेटी बनी है। अगर ये सपोर्ट प्राइस सितंबर में आ जाती तो आपकी गंदम पे लोग इन्वेस्टमेंट करते, मैक्सिमम काश करते, मैक्सिमम इनपुट्स देते और आपको एक अच्छा उसका रिजल्ट मिलता। लेकिन आज भी हम बैठे हैं इस इंतजार में जी क्या हमें सपोर्ट प्राइस मिलती है नहीं मिलती। अगर आप पिछले साल देख लें, हम काश्तकारों ने गंदम दी 2200 रुपये मन, फूड सेंटर पे पहुंचा के दी। इंटरनेशनल रेट 4500 रुपये मन था। तकरीबन 17 से 1800 अरब रुपया हमें इंटरनेशनल प्राइस से कम मिला। लेकिन कोई बात नहीं, हमें कम मिला। फिर कम अज़ कम एंड कंज्यूमर जो हमारे शहरी हैं उनको वो 2200 रुपये मन मिलती। उनको किस रेट पे मिली? 4500, 5000, 5200, 4000 रुपये मिली। यानी कि काश्तकार को भी वो रेट ना मिला और एंड कंज्यूमर को भी फायदा ना हुआ, मिडल मैन खा गया सारा कुछ। इसी तरह पिछले साल राइस में हमने जब मुंजी बेची 1800 से 2000 रुपये रेट था, बाद में वही रेट 5000 रुपये चला गया। 1000 से 1200 अरब रुपए का फर्क पड़ा, मिडल मैन खा गया। हमें इस मुल्क को तो मिडल मैन और माफिया खा गया है। हमें तो अब पॉलिसी पहली तो ये बनानी चाहिए कि मिडल मैन के साथ और माफिया के साथ हमें क्या सलूक करना पड़ेगा। अगर आज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री 2440 में दे रही है यूरिया खाद, तो हमारा डीलर हमें महंगी क्यों बेच रहा है? क्या उसको कोई पूछने वाला है? अगर यूरिया का रेट जो आज कंट्रोल रेट है, मैंने उसकी बात करनी है। अगर मेरे फार्मर को उस रेट पे नहीं मिल रही तो मैं समझूंगा कि यहाँ पे ब्लैक माफिया काम कर रहा है। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मेरा काश्तकार, देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, मैंने ही वो मुकदमा पेश किया हर जगह के ऊपर। मैंने ही कहा कि प्लांट बंद है, चलाए जाए, सप्लाई एंड डिमांड का इशू है। हमने हर जगह पे ये बात भी की है। हम हमेशा काश्तकार की भी बात करते हैं, हम इंडस्ट्री को भी साथ लेके चलते हैं, हम सब का तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काश्तकार को किसी भी जगह पे लूटा जाए, क्योंकि काश्तकार का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी, अगर हमने तंजीम बनाई है तो इसी मकसद के लिए बनाई है कि हम काश्तकार का भी तहफ़्फ़ुज़ करें, काश्तकार का भी ख्याल रखें। कभी आज तक हुआ है कि काश्तकार ने गंदम ब्लैक में बेची हो? आज अगर छापे पड़ रहे हैं गंदम के, किसी काश्तकार के घर से गंदम नहीं निकली, किसी काश्तकार के घर से मुंजी नहीं निकली। अगर उसका रेट 2000 से 5000 मुंजी का पिछले साल गया है तो किसी काश्तकार के घर से एक मन भी नहीं निकली, वो भी किसी माफिया के पास, किसी डीलर के पास, किसी के पास पड़ी थी। गंदम को ले लें, गंदम काश्तकार ने 2200 रुपये मन बेची और फिर काश्तकार वही गंदम एंड कंज्यूमर को, आम शहरी को 5000-5200 तक मिली। तो हमें इन चीज़ों का कलाकमा करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे, मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि हमारे पंजाब के 23,900 मवाज़ियात हैं, हमारे पास एक्सटेंशन के जो 550 लोग हैं, वो बजाय फार्मर के पास जाएं। वो क्या काम कर रहे हैं? वो तो यही काम कर रहे हैं कि वो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, जुमा बाज़ार, इतवार बाज़ार, डेंगी, प्राइस कंट्रोल कमेटी, उसके पास, फार्मर के पास वो। यही वजह कि तबाही हो रही है। क्या दुनिया में ऐसा है कि एक्सटेंशन डिपार्टमेंट फार्मर के अलावा किसी और के पास चला जाए? क्या दुनिया के किसी मुल्क में, अगर ब्राज़ील ने तरक्की क्यों की है कि हमारा एग्रीकल्चर रिसर्च का बजट एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 है और ब्राज़ील का 1.75 है। यही वजह वो चंद सालों में ऊपर चला गया। हमें चाहिए हम अपने रिसर्च के इदारों को भरपूर तरीके से, और दूसरी बात यह है, अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, मैं हर फोरम पे बात करता हूँ कि 60 में जब हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लालपुर थी, लुधियाना यूनिवर्सिटी बनी, उन्होंने मॉडल लिया लालपुर यूनिवर्सिटी को। वो आज भी फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम लालपुर मॉडल हैं। लेकिन हमने क्या काम किया? उस मॉडल को तबाह बर्बाद कर दिया। रिसर्च अलग कर दी, एक्सटेंशन अलग कर दी और यूनिवर्सिटी को अलग कर दिया। जब तक हम इसको इकट्ठा नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप जो मर्जी कर रहे हैं कि हम तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो लड़का एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन करके आता है, उसके पास एक्सटेंशन का और रिसर्च का अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने भी यहाँ पर मुल्तान में, मैं ये कहूँगा कॉटन में,
तबाह करने में उनका भी बड़ा हाथ रहा है पिछले 2 सालों में। हमने यहाँ भी तंबाकू के स्प्रे करवाए हैं, जिससे 2 सालों में आप रेशो देख लें कहाँ से कहाँ आ गई है। कपास कम से कम हम उससे पहले 8 साढ़े 8 बिलियन पे थे बेल पे, अब 4.6 पे आ गए हैं। हर किसी का मुहासबा होना चाहिए। हाँ, अगर काश्तकार को गलत काम करे, काश्तकार मुनासिब रेट पे ना दे, काश्तकार ब्लैक मार्केटिंग करे, काश्तकार अपने पास स्टोरेज करे, मैं कहता हूँ बेशक काश्तकार का मुहासबा हो, लेकिन अगर कोई और करे तो फिर उसको भी सजा मिलनी चाहिए, एनिमल कोई भी हो। क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे उस वक्त तक ये मुल्क नहीं चल सकता। यूनिवर्सिटी का, फातिमा फर्टिलाइज़र का मैं बहुत मशहूर हूँ कि वो एक नई तरफ जा रहे हैं, एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि हम अगर मेज़ में, मकई में अगर हाइब्रिड में गए हैं तो हम 40 मन से 120 मन तक पहुँच गए हैं। अगर हम राइस में हाइब्रिड में गए हैं तो हम 30 मन से उठ के वो जो चावल, मोटा चावल हम काश्त करते हैं 30-40 मन, वो भी हम 120 मन तक पहुँच गए हैं। तो इसलिए ये गंदम में एक रेवोल्यूशन आ सकता है। ये हमारा एक मुस्तकबिल है, फ्यूचर है। आज देखें ना, हमने कशकोल का साइज़ बड़ा कर लिया है हमारी हुकूमतों ने, लेकिन अपने मुल्क के लिए, अपनी रिसर्च के लिए, अपनी ज़राअत के लिए, अपने किसान के लिए कुछ नहीं किया। अब यकीन कर लें, काश्तकार के इस वक्त भी, आज भी न घर के हालात अच्छे हैं, न खेत के हालात अच्छे हैं, न तालीम के हालात अच्छे हैं, न उसकी सेहत के हालात अच्छे हैं। और यही वो चीज़ें हैं, अगर हम कर जाएं तो उसके घर के हालात भी अच्छे हो जाएंगे, खेत के भी, तालीम के और पाकिस्तान के हालात भी अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। शुक्रिया सर, इतनी डिटेल गुफ्तगू आपने की। हमारे पास मौजूद है मिस्टर नवाज़ मेकान, जो है डायरेक्टर जनरल रिसर्च ऑफ पंजाब। तो हम उनको इनवाइट करेंगे कि वो स्टेज पर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम फ़ख्र इमाम साहब, आसिफ अली ख़ान साहब और मेरे काबिल साद एहतराम काश्तकार भाइयों और आल पार्टिसिपेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे 2 मिनट दिए हैं। गंदम वाकई जिस तरह सारे दोस्त बता रहे हैं, बड़े स्पेशलिस्ट बैठे हैं कि मेरा ये फीड नहीं है, मेरा दूसरा फीड है, लेकिन मैं गंदम को उगाता भी हूँ और खाता भी हूँ। रोटी के बगैर मुझे भी नींद नहीं आती, लिहाजा ये हमारी वीक पॉइंट है कि हम इस पे खातिर खा तवज्जो दें। हमने इस दफ़ा बड़ी अच्छी टाइम स्विंग की और इंशाल्लाह अच्छी रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन है, अच्छा रिज़ल्ट आएगा। लेकिन ये जो हमारी फसलें दो ओवरलैप करती हैं, वीट और काटन, तो इससे हमें कोई सलूशन नहीं मिल रहा। इसका हमें कोई शॉर्टकट निकालना चाहिए। या तो ये है कि वीट जो है उसकी ड्यूरेशन और कम कर दें और उसमें फिर हम काटन जो है वो सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन जब ये दोनों ओवरलैप करती हैं, सोइंग टाइम और हार्वेस्टिंग टाइम दोनों का शार्ट हो जाता है, तो दोनों क्रॉप्स का नुकसान होता है। तो इंशाअल्लाह ताला हाइब्रिड का ये बड़ी अचीवमेंट है। और उस वक्त तक हम इस पे खुद कफील नहीं हो सकते जब हम वर्टिकल या पर एकड़ पैदावार में इजाफा नहीं करेंगे। तो ना हमारा किसान खुशहाल होगा, ना हमारा मुल्क खुशहाल होगा, ना हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ेगा। ये हमारा वीक पॉइंट है। अनटिल एंड अनलेस जब हम फी एकड़ पैदावार नहीं बढ़ाएंगे तो हम इसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते। हमारी जो भी वैरायटीज़ हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पोटेंशियल है। 60 मन फी एकड़ तक पोटेंशियल है, 70 मन तक, लेकिन हम आधे से भी कम ले रहे हैं। तो अगर ये गैप ही हम निकाल लें, उसके कई स्टेप्स हैं, कई स्लैब हैं, अगर उनको हम ब्रिज कर लें तो इंशाल्लाह ताला ये टाइम वक्त दूर नहीं है कि ये इंशाल्लाह हम ब्रिज कम कर सकेंगे और हम अपने मुल्क को खुद कफील कर सकेंगे। और बल्कि गंदम जो है उसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में गंदम कोई उगाना इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये विंटर की क्रॉप है। इसमें ज़्यादा उस वक्त गर्मी नहीं होती। सोइंग टाइम से लेके पकने तक, हार्वेस्टिंग तक, इसके सारे ऑपरेशन बड़े टाइमली हो सकते हैं। हमें अब हम मेरे दोस्त ने फरमाया है पहले कि ये हमारे पास इतना रकबा पड़ा है, लेकिन रकबा तो पड़ा है लेकिन हमारे पास पानी नहीं है। पानी के बगैर हम किस तरह वो रकबे को अंडर प्लो ला सकते हैं। हमारे पास जो अवेलेबल पानी है, जो वाटर के रिसोर्स हैं, जो रकबा है, हमने उसी को बेस्ट यूटिलिटी लगा के हमने फी एकड़ पैदावार बढ़ानी है। फिर अब ये शर्मिंदा ताबीर हो सका। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं कहता हूँ कि मैं जो कम्पिटेंट लोग हैं, जो इस सब्जेक्ट के वीट के माहिर हैं, उनको टाइम दिया जाए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। शुक्रिया सर इतनी मुख्तसर और जामे बात करने का। हमारे पास मौजूद है डॉक्टर आबिद महमूद और हम इस मौके का फ़ायदा उठा के उनको भी स्टेज पे बुला रहे हैं। ये CEO हैं हमारे पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड के। तमाम हमारे ज़मींदार दोस्त भाई, अस्सलाम वालेकुम।
तो मैं समझता हूँ कि आज की ये जो तकरीब है, ख़ास तौर पे फातिमा फर्टिलाइज़र और MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद एक सरमनी पे साइन कर रहे हैं, तो बहुत सी बातें हो चुकी हैं इन चीज़ों में, और नसीरुल्लाह साहब ने बड़ी अच्छी फिगर्स दी हैं, और जो जिस तरह उन्होंने बताया है कि अगर हम पैदावार, अब हमारे पास सोल्यूशन यही है। मेकन साहब ने बड़ी सही बात की कि पानी भी हमारे पास लिमिटेड है, साइल भी जितनी है वो, तो इसमें हम पर एकड़ पैदावार ही बढ़ाएंगे तो फिर ही हम इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। और नसीरुल्लाह साहब ने बड़ा और बड़ी, मैं समझता हूँ कि कोई ये एक प्रैक्टिकल जो जितनी हम पैदावार बढ़ा सकते हैं वो फिगर्स दी हैं, और इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें बुनियादी चीज़ जो है, जो हम आसानी से कर सकते हैं, जिसमें कोई वो बीज ही है। क्योंकि जहाँ भी तरक्की हुई है, जहाँ भी हुई है, आप पाकिस्तान में देख लें, हमारी मकई की पैदावार, हमारी ये पोटैटो की पैदावार दुनिया के बराबर है, तो उसमें हाइब्रिड बीज आए हैं। तो ये गंदम भी एक दिन जो है ये हाइब्रिड आना है। चावल आपके सामने है, जिस तरह पैदावार जितनी बड़ी है। तो बीज के ऊपर हमारे जनाब सैयद फ़खर इमाम साहब जब मिनिस्टर थे, अभी ये बात हुई है, इन्होंने सीड की तरफ तवज्जो दी। इन्होंने कहा जी इसको चैनलाइज करें, इसको बेसिक सीड, परी बेसिक सीड अयूब रिसर्च के में लगा कि आप इतना, ये मीटिंग लेते थे और फिगर पे बात करते हैं कि इतना बीज चाहिए, बैक कैलकुलेशन हुई, उतना बीज अयूब रिसर्च ने बनाया और उसी तरह बना, उससे पैदावार में इजाफा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम बीज को कर लें, पानी तो अब हम कहेंगे जी डैम बनाएं, फलां करें, वो तो पॉलिटिकल मसाइल हैं, वो पता नहीं कब हल होंगे। तो बीज की तरह मैं समझता हूँ कि ये जो एक तवज्जो दी जा रही है, और ख़ास तौर पे गंदम के अंदर जो ये बात हो रही है, बाकी चीज़ों में हम दुनिया से, खोखर साहब की बात जो है ना, 90% या 95% कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता, इधर कोई भी बैठा हुआ है जो, तो बड़ी प्रैक्टिकल उन्होंने बातें की हैं। तो इसमें जब तक हम ज़मींदार को किसी तरीके से नहीं अपलिफ्ट करेंगे, उस वक्त तक हमारी पैदावार नहीं बढ़ेगी। और ज़मींदार के साथ जो सलूक हो रहा है, आप समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं, कौन बंदा है पाकिस्तान का जो ज़मींदारा कर रहा है, बेशक उसके 2 एकड़ हैं या उसका 2000 एकड़ है, वो अपने बच्चे को, अगर उसको कोई भी और काम मिल रहा है ना, तो वो कर रहा है, वो कहता है यार इससे तो इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती है। लैंड लॉर्ड लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ज़मीन वाले को, और कोई लॉर्ड नहीं होता जो है। जब बरतानिया भी लैंड है, जब लैंड लॉर्ड, हमारे लैंड लॉर्ड का ये हाल है, जितनी भी ज़मीन है, बेशक बड़ा छोटा है, वो कहता है बच्चा किसी और काम पे लग जाए। तो ये सूरत हाल हुई है। इसमें अगर हम पॉलिसीज़ बनाएं, अच्छा बीज दें, और थोड़ी सी मेहनत, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ, मैं भी DG साहब की तरह 2-3 मिनट ही बात करूँगा, क्योंकि बहुत सी बातें हो चुकी हैं। तिल एक छोटी सी फसल है पाकिस्तान की, कोई ख़ास फसल नहीं है। पिछले साल हमने 38 बिलियन रुपए के, मिलियन नहीं बिलियन, बी वाला बिलियन, 38 बिलियन के एक्सपोर्ट किए हैं। अगले साल हम 100 बिलियन के एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और ये ऑफिशियल फिगर है। जो ईरान गए, जो अफगान, वो इससे अलावा है। तो हमारा पोटेंशियल है किसी भी क्रॉप में। तिल, कोई फसल, कोई इन तिलों में तेल नहीं, हम कैसी मसाले देते हैं। तो 38 बिलियन के हमने एक्सपोर्ट कर दी। सिर्फ क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने 5000 रुपये सब्सिडी दी ऑयल सीड के ऊपर, और उन्हें कहा कि ये जो बीज है इसको दे। ये ज़मींदार बेचारा बेबस है, ये बड़ा जफाकश ज़मींदार है। इस तरह का ज़मींदार दुनिया में कहीं नहीं है जिस तरह की ये मेहनत करता है जो पाकिस्तान का ज़मींदार है। किस तरह गर्मी में, सर्दी में अपनी मेहनत करता है। जब उसको सिला नहीं मिलेगा, इसको आप कह देना कि ये डेफिसिट आप तिलों से पूरा कर दें, तो ये तिलों से पूरा कर देंगे, यकीन करें। सिर्फ थोड़ी सी जो उनकी ज़रूरत है वो पूरी हो जाए तो हो जाए। इस तरह और बहुत सी मिसालें हैं, बहरहाल टाइम बहुत कम है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, हम हर चीज़ में पीछे हैं, लेकिन ये जो हाइब्रिड वीट आ रहा है, इसमें हम दुनिया के बराबर है। मैं वाइस चांसलर साहब रवासे साहब को ये मुबारकबाद पेश करूंगा, और हमारे जो रिटर्ड साहब हैं उनको भी ये उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि ये अभी कहीं दुनिया में ये कमर्शियल नहीं हुई अभी जो वीट है हाइब्रिड। आज हम दुनिया के बराबर हैं, जहाँ पे दुनिया में भी ट्रायल हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी ट्रायल हो रहे हैं, यूरोप में भी हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी हो रहे हैं। अगर हमारी हुकूमत इसको साथ लेके चले, और असल जो तरक्की होनी है वो प्राइवेट सेक्टर से होनी है। नसीरुल्लाह साहब, ये अब गवर्नमेंट का हाल है, वो देखो 12 बंदे बैठे हुए हैं तो तनख्वाह के लिए, तो गवर्नमेंट में तो ऐसे ही चलना है ये। तो प्राइवेट सेक्टर अगर आगे आएगा, प्राइवेट सेक्टर भी इससे इंशाल्लाह मुस्तफीद होगा,
और मुल्क भी तरक्की करेगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो फातिमा फर्टिलाइज़र और बाकी जितने भी लोग इसमें कोलैबोरेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम हाइब्रिड वीट में जो है वो दुनिया के बराबर होंगे। और हमारी जो गंदम है, जो कह रहे हैं ना एरिया कहाँ से है, गंदम की ज़ाहिर पैदावार बढ़ जाएगी, वही आप ऑयल सीड में ले आएँ, वही आप बाकी चीज़ों में ले आएँ, तो इंशाल्लाह जो है हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अब टाइम है एग्रीमेंट साइन का, तो आई विल कॉल अपॉन प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब ऑन दैट चेयर। डॉक्टर रिचर्ड, प्लीज़ ज्वाइन हिम ऑन द टेबल। स्पीच है शील्ड के पास। अली शेर साहब, आप इधर कॉर्नर में आ गए। Congratulations, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि आज गंदम की पैदावार के बारे में जो गुफ्तगू हुई है और हाइब्रिड वीट, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत, ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर डॉक्टर रिचर्ड, आई एम सॉरी आई डोंट नो योर लास्ट नेम सर, फ्रॉम Tritswan from the University of Sydney, specialist in plant breeding and geneticist par excellence, if I may use that word, has made the presentation. आप और हमारे लिए मैं समझता हूँ कि एक शायद नया बाब खुलने वाला है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को मैं 3 दफ़ा मिला था, जो नोबेल लॉरिएट भी थे, और वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे अमेरिका में यूनिवर्सिटी में जब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए थे। और उनके हायल कोई नहीं हुए थे, उनके जो सीनियर साहिबान थे कि ये जूनियर और हम सीनियर हैं। एक शख्स जिसने दुनिया को कहत से बचाया। उस वक्त दुनिया की आबादी तकरीबन 5 अरब थी, आज दुनिया की आबादी 8 अरब हो चुकी है। 8 बिलियन आबादी 8,000 मिलियन हो चुकी है दुनिया की। और वो वक्त ये था 1960 और 1965 के दरमियान कि हमारा जो बर सग़ीर था, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, कराची, यहाँ शिप लोड्स आते थे गंदम के कि यहाँ कहत ना हो। आखिरी कहत इस बर सग़ीर में 1943 में हुआ था, 1943 में, जब बंगाल में गंदम नहीं पहुँची थी और 34 लाख लोग बेचारे फौत हो गए थे। यह है इस इलाके की तारीख़। और वो अमेरिका से आती थी गंदम उस ज़माने में, क्योंकि वाफिर गंदम उस वक़्त नॉर्थ अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास, और PL 480 के तहत वो ये गंदम मुफ्त देता था इस खत्ते को। नॉर्मन बोरलॉग ने एक जीन जिसका आप नाम ले रहे थे, नॉर्मन 10 को पैदा किया, उसको इजाद किया। आज हमें उस किस्म की ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में पैराडाइम शिफ्ट। वी नीड अ न्यू पैराडाइम शिफ्ट आफ्टर nearly 50 to 60 years। वो नॉर्मन बोरलॉग खुद कहते थे, जो मेरी उनसे 2 मरतबा मुलाकात आखिर में हुई, कि within the next 5 to 10 years Pakistan needs another new paradigm shift, and I hope somebody will come up with that. So if the University of Sydney and the University of Agriculture Multan under the Honorable Dr. Asif Ali Sahab can achieve this, Pakistan will have made not only a breakthrough for
the people of Pakistan and the farmers of Pakistan, but for the global scene. ये बहुत बड़ी हमारी कंट्रीब्यूशन होगी, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में मैं गया हुआ था यूनिवर्सिटी में, और मैंने उनसे यह सवाल किया जिन्होंने कॉटन पे बहुत ज़बरदस्त रिसर्च की है कि आप क्यों नहीं गंदम में ये वो रिसर्च उस पैमाने पे करते। और उन्होंने एक फ़िक्र में मुझे जवाब दिया था, हमें इसमें मुनासिब प्रॉफिट नहीं नज़र आता। तो वो ड्राइव है उनकी रिसर्च की भी प्रॉफिटेबिलिटी के तहत। वो दुनिया को शायद इतना नहीं देखते, क्योंकि वो उनके अपने अज़ाइम हैं, उनके अपने टारगेट्स हैं कि किस तरीके से उन्होंने ग्लोबल पिक्चर के साथ चलना है। हम जो पाकिस्तान के काश्तकार हैं, हमारी तकरीबन 196 मिलियन एकर्स तमाम ज़मीन है इस वेस्ट पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, जिसमें से 50 मिलियन एकड़ जो है ज़ेर काश्त है, जिसमें से 32 मिलियन एकड़ जो है वो इरिगेटेड है, 18 मिलियन एकड़ हमारी जो है वो बारानी इलाके की है। गंदम की पैदावार, नसीरुल्लाह साहब, यू मेड एन एक्सलेंट प्रेजेंटेशन, आई मस्ट कमेंड यू फॉर इट। आपने कहा कि अगर हमारी 22 कुछ मिलियन एकड़ जो इस वक्त गंदम ज़ेर काश्त है, पिछले से पिछले साल हमने रिकॉर्ड प्रोडक्शन ली सर 27.3 मिलियन टन पाकिस्तान की तारीख के। उसके बावजूद हमने पाकिस्तान की जो ज़रूरत थी वो पूरी नहीं की, हमें 1.9 मिलियन टन इंपोर्ट करनी पड़ी। इस दफ़ा हमारी ज़रूरत ज़्यादा थी क्योंकि पैदावार कुछ कम हुई, 26.3 मिलियन टन मैं गंदम की बात कर रहा हूँ, और इसलिए हमें इस साल ज़रूरत तकरीबन 25 लाख टन की थी, अभी तक शायद कम आई है। और यही वजह है कि अब वो आपको लाइनें नज़र आती हैं। हालांकि ये फिगर हमें 1 साल पहले पता था, और होना ये चाहिए था जब गंदम की कीमत इंटरनेशनली कम होती है उस वक्त अगर हम ख़रीदारी कर लेते तो हमें 3600-3800 पे मिल जाती। अब हमने ज़्यादा कीमत पे ख़रीदी। खैर ये एक और बहस। बुनियादी बात यह है कि हमारे जो काश्तकार हैं, और इसमें खालिद साहब, खोखर साहब ने आपकी नुमाइंदगी, जहाँ भी गए हैं वफाक की सतह पर, सूबाई सतह पर, पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज़ उन ऐवानों तक पहुँचे जहाँ के फ़ैसले होते हैं। पर जैसे उन्होंने खुद कहा, पाकिस्तान में काश्तकारों के जितनी तादाद है उसके मुताबिक हमारे हक में फ़ैसले नहीं होते। मैं ये हुकूमत में बैठ के बात करता था, आज भी बात करता हूँ। बात करनी चाहिए जो सही हो, चाहे आप कहीं भी बैठे हो। मुश्किल वक्त होता कई मरतबा बात करना, पर सच बात करनी चाहिए। 4 या 5 फसलों में हमने रिकॉर्ड प्रोडक्शन ली पिछले साल, गंदम में, धान में, मकई में, शुगर केन में 81 मिलियन टन्स, 9.8 मिलियन, 10.0 मिलियन टन धान और उसका मकई का, और पोटैटो में भी हमें 5 क्रॉप्स में रिकॉर्ड प्रोडक्शन ली 1 साल में। मैं समझता हूँ ये किसी का कारनामा नहीं था, कुदरत की मेहरबानी थी, पर मेहनत काश्तकार की थी, और कुछ हद तक हमने पॉलिसी में, इंस्ट्रूमेंट्स में तब्दीली लाने की कोशिश की। उस हद तक हम पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स को नहीं तब्दील कर सके जितना हम चाहते थे, पर उसमें हमने एक ट्रेंड सेटिंग कर दी कि 9 साल के बाद हमने मिसाल के तौर पर कपास की एक इंटरवेंशन प्राइस लेकर आए। और मुझको पता है कि जिस तरीके से वो हम लेकर आए, जितनी अपोजिशन हुई, उसके बावजूद उस वक्त की हमारी हुकूमत ने तस्लीम किया कि ये होनी चाहिए। ये एक और बात है कि इंटरनेशनल प्राइस बहुत आगे चली गई, पर काश्त बहुत कम हुई। पिछले साल तो निस्बतन ज़्यादा हुई थी, इस दफ़ा हुई भी, पर हमने तकरीबन 2 मिलियन बेल, मेरा अपना असेसमेंट है, जो हमारा फ्लड आया सिंध में वो बह गई और काश्तकार का बहुत नुकसान हुआ। 4.56 मिलियन बेल पाकिस्तान के जैसे ख़ित्ते के लिए बहुत ही एक कम पैदावार है। और जब आप ये कहते हैं कि हम वहाँ अगर गंदम की पैदावार में इजाफा कर दें, की इशू है 31 कुछ मन फी एकड़ हमारी पैदावार है नेशनल, मेरी बात मैं कर रहा हूँ, जब हमारी अच्छी प्रोडक्शन हुई है। और आप ये कह रहे थे कि अगर हम 40 मन पर एकड़ ले जाएं तो वो जो हमें मिलता है तकरीबन 4 मिलियन एकड़ का विंडो, उसमें हम ऑयल सीड भी ला सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अर्ली कॉटन ला सकते हैं। यहाँ 2-3 साहिबान ने हमारे छोटे से एक एक्सपेरिमेंट हमने 4 साल से कर रहे हैं। मेरे जो अपने आदमी थे फार्म पे 2017-18 के बाद कहते थे हमने कॉटन नहीं काश्त करनी, हम लॉस में हर साल जा रहे हैं, क्यों करें? मेरे अपने फार्म की मैं बात करूँ मुख्तसरन। फिर हमने उसको थोड़ा थोड़ा ऐड किया और उसमें एक यहाँ साइंटिस्ट हमारे बैठे हैं भालपुर यूनिवर्सिटी के, उन्होंने इसमें हमारी बहुत ज़बरदस्त गाइडेंस की
और उनके साथ हमने मिल के जो काम किया पिछले 3 साल, कुदरत की बहुत बहुत मेहरबानी है, हम नेशनल एवरेज से बहुत आगे चले गए। पर वो हमें, उसके लिए हमें महारत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस सीड की है। और ये जो बात हम करते हैं कि सीड टेक्नोलॉजी बेस है, पंजाब सीड कॉरपोरेशन 1976 में वर्ल्ड बैंक के तहत क्रिएट हुआ। सिंध सीड कॉरपोरेशन 1976 में क्रिएट हुआ। सिंध सीड कॉरपोरेशन एक दिन नहीं चला। पंजाब सीड कॉरपोरेशन में मैं पहला पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव था। उस वक्त की हुकूमत ने मुझे कहा कि आप इसके नुमाइंदे, मार्शल लॉ आ गया 5 जुलाई 77, मैंने रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद मैं नहीं उसके करीब गया, पर मैंने उसको इब्तिदा में देखा, उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी सीड मल्टीप्लिकेशन की। 6000 एकड़ वो उसकी ज़मीन थी, 6000 एकड़, और उसके ऊपर आपकी 30% मल्टीप्लिकेशन होती थी पाकिस्तान की गंदम की सीड की मैं बात कर रहा हूँ, क्वालिटी ऑफ सीड, प्री बेसिक, बेसिक, सर्टिफाइड। जब मैं गया हूँ वजारत में तो मैंने ऐसे टेक्निकल थोड़ी थोड़ी बातें शुरू की, वो लोग घबराने लगे मेरे से कि जनाब ये क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ तो बातें पता नहीं क्या क्या किसी और तरीके पे जाती थी। मैं आ गया सीधा सीट पे, और जब मैंने अपने माहिरीन को बुलाया कि मुझे आके आप गाइड करें, क्योंकि वो माहिर है मैं नहीं हूँ, तो थोड़े से घबराते थे, और फिर खुद नहीं आते थे, अपने नंबर 2 उसको कहीं से बुलाते थे कि आइए जी पेश करें। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, पर पाकिस्तान के लिए ये जो बहुत बड़ा चैलेंज है सीड टेक्नोलॉजी का, और ये जो ओपन पॉलिनेशन की हम बात करते हैं, अभी बात कर रहे थे 12.8 मिलियन बेल्स कॉटन ओपन पॉलिनेशन से हमने की थी। इंडिया 11.4 मिलियन था, आज इंडिया बिटवीन 30 to 40 मिलियन बेल्स पे चला गया। चाइना 32 to 35 मिलियन बेल्स पे चला गया। और मुझे अभी तक याद है, मेरी उस वक्त डॉक्टर मुरीनुद्दीन खान थे जिनकी S12 ने हमें बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू दिया था। सईद इकबाल साहब पहले इंसान थे ओपन पॉलिनेशन के, इनके नाम लेने चाहिए। ये हमारे उस वक्त के नॉर्मन बॉलॉग्स थे, आज उनका नाम ही हम नहीं लेते। ये हमारे नॉर्मन बॉलॉग्स थे। कपास में इन्होंने हमें 4 मिलियन से 12.8 मिलियन बेल्स पे हमें ले गए थे 8 साल में। दुनिया में इस किस्म की तेज तरक्की कॉटन प्रोडक्शन में किसी और मुल्क ने नहीं की, हमारे लोगों ने की थी। और ये 2 इंसान जो थे दे वर द की, सईद इकबाल फ्रॉम फैसलाबाद एंड मुनीरुद्दीन खान फ्रॉम मुल्तान। आप उनका नाम भी आज नहीं जानते होंगे। हम ऑनर नहीं करते अपने लोगों को जिन्होंने सही मानों में इस खेत में, इस ज़मीन के लिए जो मेहनत की, और काश्तकारों को बहुत लेकर आगे आए थे। उन्होंने ट्रेन किया कुछ लोगों को, उनमें मैं भी शामिल हूँ। आज वक्त आ गया है, आज वक्त आ गया है। क्योंकि मैं क्यों जोशीला हो रहा हूँ, क्योंकि बहुत छोटा से ट्रायल में हमने थोड़ी सी ब्रेक थ्रू की है। अभी मैं उसकी बात नहीं करता, क्योंकि वो अभी तक उस स्केल पे नहीं गई कि मैं कहूँ जनाब ये हो गया। मैं उन चंद अफराद में हूँ, जब मेरी 40 मन भी होती है तो मैं खामोशी से कहता नहीं जी 32 है। बेशतर काश्तकार की 30 होती है, कहते 50 है। माजरत से बात करूँ, मेरा बिल्कुल साइकी और है, और मेरी एक ही कोशिश है कि किसी तरह अगर उस चीज़ को हम लेकर, हमने प्रेजेंटेशन एक की थी डॉक्टर बंदेशा साहब ने, जिसमें मैं भी शामिल था, डॉक्टर आसिफ ने, कोई 25 काश्तकार बुलाए थे 3 माह पहले, कि जो स्मॉल स्केल पे हमने किया, आप भी करें 25-25। उसके लिए 3 चीज़ों की नहायत ज़रूरत है, और वही बुनियाद है जो कि आपको ब्रेक थ्रूज देगी, जैसे आज ये हम गंदम में करना चाह रहे हैं। नंबर 1, सीड, क्वालिटी ऑफ सीड, वायबिलिटी ऑफ सीड, पोटेंशियल ऑफ सीड। नंबर 1, वो 30% चीज़ है बुनियाद आपकी। उसके बाद इनपुट्स, जिसकी खालिद साहब बात करते हैं बार बार, सिर्फ कीमत की बात नहीं है हुजूर, क्वालिटी। माजरत से बात करूंगा, वेदर इट्स फर्टिलाइजर, वेदर इट्स पेस्टिसाइड, हमारे पास कितनी टेस्टिंग लेबोरेटरीज है मार्केट में। आप दूसरे ममालिक में चले जाएं, जिस किस्म की वो करते हैं, हमारे यहाँ तो पता नहीं किस ग्रेड की वहाँ से आती है बाहर से पेस्टिसाइड। माजरत से बात करूंगा, और उसकी एफिकेसी क्या है, उसकी क्या परसेंटेज क्या है ऑन द ग्राउंड, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है। हमको इस किस्म के रखते हैं यार। ये बैठे हैं हमारे डॉक्टर आबिद साहब, मेकन साहब, बताएं सर, डू वी एवर कीप एनी रिकॉर्ड ऑफ द क्वालिटी ऑफ इनपुट्स वी आर पुटिंग इनटू आवर मेजर क्रॉप्स इन पाकिस्तान। ये है बुनियादी चीज़ें बदलेंगी, क्वालिटी ऑफ सीड, क्वालिटी ऑफ इनपुट्स एंड कंपेटिटिव प्राइस ऑफ इनपुट्स। इस पर हम बहुत झगड़ा करते रहे। तीसरी चीज़ मार्केटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ जी,
यहाँ क्या होता है जी, वो एक पुराना सिस्टम बना हुआ था और उसमें भी फिर तब्दीली आई 20 साल पहले। ये हमने कॉपी किया था वही हमारे नेबर से, एक पूरा इदारा खड़ा कर दिया था। 2002 में इस इदारे को बैकआउट कर दिया गया। माजरत से बात करूंगा, पीसीसीआई कराची में था, रातों रात उसको निकाल दिया गया। आपने जो किया है अपने मेन इदारों के साथ, यहां कोई बात नहीं करने के लिए तैयार। वो बेस थे आपके, वहां कंटिन्यूटी तसलसल था आपका, आपको पता था कि क्या होता रहा। यहाँ क्रॉप्स भी है, ये हमारे कॉटन के इतने अच्छे इदारे थे, 60-70 साल से चल रहे। पंजाब सीड के साथ क्या हुआ, 5,500 एकड़ 6,000 में से कब्जा करवा दिया। पीसीसी का वहां से मेन दफातर थे तो खत्म कर दिया आपने। शायद आपको मेरी बात अच्छा नहीं लगे, पर ये बुनियादें हैं। जब तक आप इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करेंगे, अपने माहिरीन को वहां मौके फराहम नहीं करेंगे, और मौके बगैर सिफारिश के होने चाहिए। ये डॉक्टर आबिद महमूद को मैं जानता हूं 30 साल से, मुनीरुद्दीन खान साहब के साथ काम करते थे। अ टोटल प्रोफेशनल टू हिज टोज। बात मुझे नहीं करनी चाहिए पब्लिकली, मैं कह रहा हूं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने आप और मेरे लिए जितनी कोशिश काविश की है, क्योंकि इनके अंदर वो एक लावा है कि इस मुल्क को, फिर आपने सर कहा 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट है, 31 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है, 49 बिलियन डॉलर, जिसमें से 4.5 बिलियन डॉलर एडिबल ऑयल की हम इंपोर्ट कर रहे हैं। पहले तो ये होता था कि 30% आपका जो एडिबल ऑयल होता था वो क्रश होके कॉटन सीड से आता था। कॉटन जब कंप्लीटली गिर गई तो वो वैसे ही हो गया। एक और मैं आपको फिगर देना चाहता हूँ, कॉटन की इंपोर्ट पे कोई ड्यूटी नहीं है। हमने फिगर निकाले थे यहाँ कॉटन के ऊपर, मैंने मिनिस्ट्री को कहा निकालो, डरते थे, कहते नहीं जी सर हमारे पीछे लग जाएंगे लोग। मैंने कहा निकालो। 10 साल क्या होता रहा, काश्तकार को 43 बिलियन रुपीस पर एनम कम मिलता रहा 8 से 10 साल, 8 आउट ऑफ 10 ईयर्स, जो इंटरनेशनल प्राइस थी। आपको हजूर जो यहाँ काश्तकार उस वक्त के थे पिछले 10 साल 43 अरब रुपए इंटरनेशनल प्राइस से हमें, जिस वक्त वो मलाई पहले दिन खा गए जो भी थे वो खरीदार, उनको क्या जरूरत है कि वैल्यू एडिशन करें कपास में। उनका तो सारा प्रॉफिट ही आता था कि वो काश्तकार को कम कीमत देते थे। ये भी एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त एक हमारे लिए सेटबैक है। करेक्टिव एक्शन के लिए वही लोग आते हैं और कहते हैं सर हम कॉटन की प्रोडक्शन करेंगे। मैं उनके नाम नहीं यहाँ लेना चाहता। वही लोग आते हैं बैकडोर से, वो कहते हैं जनाब जिन्होंने इसको पीछे करते गए, अब कहते हैं जी हमारे पास जितनी महारत है किसी के पास नहीं। भी तुम करते क्या रहे हो 20 साल अगर महारत है तुम्हारे पास? मैं बात पर्सनल नहीं होना चाहता, पर ये उनकी एक लॉजिक है। आज जहां हम खड़े हैं पाकिस्तान, हम इक्तिसादी तौर बहुत एक मुश्किल दौर से गुजरे हैं। IMF की 10 दिन मीटिंग हुई 31 जनवरी से 9 फरवरी, कोई इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। आप देखते हैं कि मुख्तलिफ आवाज़ें उठती हैं। काश्तकारी, एग्रीकल्चर, मैं ये समझता हूँ इसमें इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट की बात हर एक ने की है। इन्वेस्ट करें, इसमें इन्वेस्ट करें, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें, ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट करें। हम देखेंगे 3 साल के अंदर देयर विल बी नो IMF डिमांड, बट वी हैव टू हैव अ प्रीरेक्विजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एग्रो। आप जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं सर, आप देखें 20 साल पहले आप कहाँ खड़े थे और काश्तकार कहाँ खड़ा है, उसका आप निकाल लें ग्राफ 20 साल का। वेयर हैज द प्रॉफिटेबिलिटी गॉन? आज वक्त आ रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं, जेन्युइन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ टैक्स ने, आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट इफ थिंग्स अदर देन दैट हैपन देन आई हैव अ प्रॉब्लम। वक्त आ रहा है पाकिस्तान के चैलेंज का। आप अपने इर्द गिर्द देखें, चाइना सुपर पावर बन गया है, अमेरिका उससे खौफजदा है। क्यों? उसने इन्वेस्ट किया अपने ह्यूमन रिसोर्स में, उसने इन्वेस्ट किया इसमें ज़राअत में, उसने इंडस्ट्री में, और सबसे ज़्यादा हाईटेक में किया। वही फार्मूला लेके हिंदुस्तान चल रहा है। 600 अरब डॉलर उसके आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है आपके। दो हफ्ते की आपके पास सारे पैसे हैं इस वक्त। मैं तो थोड़ा इंटरनेशनल सारी सीन जानता हूँ और मुझे इंतहाई खुशी हुई है। आई एम सो हैप्पी सर and grateful to you coming from Australia and your colleagues working in other parts of the world, that you are willing to state that Pakistan is possibly at the same level and maybe slightly ahead in bringing about a change on
hybrid wheat, which could give us all the spaces which my colleague here mentioned on edible oil, on cotton and other crops. खाने का वक्त हो गया, I'm sure. मैंने शायद थोड़ी जज्बाती स्पीच कर दी, माजरत खां, शुक्रिया. Thank you very much, sir. Very thought-provoking lines I have noted from you. Now I will call upon Dr. Asif Ali on the stage for souvenir distribution. Along with, I would like to invite Dr. Richard. Please come on the stage, and Miss Rabiel Saduzai. Dr. Nasirullah Khan, please join us on the stage. Now I would like to request Dr. Nagash to please come on stage to receive his souvenir. अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सैयद हसन आबदी साहब को कि वो स्टेज पर प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ, अपना souvenir रिसीव करें. अब मैं गुजारिश करता हूँ खालिद खोखर साहब को कि प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपना souvenir रिसीव करें. डॉक्टर नवाज मेकन डीजी रिसर्च से कि वो प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपना souvenir रिसीव करें. मैडम राफेल का souvenir प्लीज़ स्टेज पर लेके आएँ. अहमद
अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नसीरुल्लाह खान साहब का सुवीनियर प्लीज स्टेज पर लेके आए। मुकरम साहब। आप भी साहब प्लीज स्टेज पर आ जाएं। आप भी अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर आसिफ अली से, नसीरुल्लाह खान साहब से, मैडम रबेल सदुजई से कि वो सैयद फ़खर इमाम साहब को सुवीनियर पेश करें। अच्छा जी, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। जो गेस्ट हैं वो अब फील्ड विजिट करेंगे और जो फार्मर कम्युनिटी हमारे साथ इधर मौजूद है, रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम इसी पंडाल के अंदर है, तो आप लोग काइंडली इधर ही स्टे करें। अब हम फील्ड विजिट के लिए जाएंगे। तमाम लोगों का शिरकत करने का बहुत बहुत शुक्रिया।